اب اس کے بعد میں شیخ عبدالرحیم صاحب مدنی حفظہ اللہ کو صدر کی حیثیت سے بھی صدارت کی کرسی پہ منصوبہ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح سے آج مقرر بھی وہی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تعلیم و تعلم کے تعلق سے جو ہمارے یہاں ابھی فضیلت تک کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آغاز کریں گے، تو اس کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے اور یہ ہمارے یہاں سے فضیلت تک کی تعلیم کیوں ضروری ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ساری باتیں انہی کی زبانی سنیں گے۔ اور ہمارے جو بھی بھائی ابھی اس میں نہیں آئے ہیں ماشاءاللہ آ رہے ہیں، تو شیخ عبدالرحیم مدنی حفظہ اللہ اپنا بیان جاری کریں، اور وہ تعلیم کے تعلق سے خاص طور سے اس کے متعلق آپ ضرور بتائیں، اور اس تعلق سے اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوالات بھی ہوں تو ضرور کریں، تاکہ ہم لوگ ریمائنڈ ہو جائیں اور سب کے ذہن شادی ہو سکے، اور ہم لوگ جو ہے بہترین ڈھنگ سے اس کاج کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ شیخ عبدالرحیم مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ إخواني في الله، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد میں مقصد حیات گروپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس سے پہلے کتنے دروس محاضرات تجارت کے اوپر ہوئے، اور بہت سارے طریقے، بہت سارے راستے اور اس کے فضائل بہت سارے علماء کرام نے رکھا، لیکن ایک تجارت کے طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایسی تجارت ہے جس سے ہر فرد کو کی ضرورت ہے، اور وہ تجارت اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا تمہیں میں ایک ایسی تجارت بتلاؤں جو تم کو عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس تجارت کو بتلایا جو اخروی زندگی کے لیے ہمارے نجات کا ذریعہ ہے، یا عذاب علیم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے ہم نے بہت سارے تدابیر کیے، بہت سارے راستے اختیار کیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اخروی تجارت بھی کرنی چاہیے جس سے ہم عذاب علیم سے بچ سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تجارت کے بارے میں بتلایا کہ وہ تجارت کیا ہے کہ جس سے ہم عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ کہا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنے نفس سے، تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے
ख़ास तौर से जो तिजारत बतलाया है वो बहुत ही अहम है कि सारे लोगों के लिए, सारे इंसानों के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए। ईमान बिल्लाह ये सारे लोगों के लिए है, और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान। लेकिन जो भी तिजारत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया है, ज़रूरी है उसके लिए इस्लाम को पढ़ना और कुरान को समझना, हदीस को जानना। ये सारी चीज़ों को जाने बगैर हम ना तो अल्लाह पे ईमान ला सकते हैं, ना समझे बगैर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकते हैं, ईमान ला सकते हैं, और नहीं हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर सकते हैं। तो इस सब को समझने के लिए हमें दीन इस्लाम के तरफ रुजू करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उसके लिए कुरान और हदीस सुनना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलमाए कराम के बारे में, ख़ास तौर से इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला, सबसे ज़्यादा डरने वाला कौन है? उलमाए कराम। क्यों? इसलिए कि उन्हें किताब व सुन्नत के बारे में पता है, अल्लाह के दीन के बारे में पता है, उन्होंने दीन को सीखा है, तालीम को हासिल किया है, उन्होंने कुरान को समझा है और उसका दर्स लिया है। इसलिए कुरान और हदीस जब वो उसका दर्स लिया है तो अब उसके अंदर अल्लाह का खौफ कि कहाँ पे आज़ाब हो सकता है और कहाँ पे हम सुरखरू हो सकते हैं, इस चीज़ के अंदर कामयाबी है और किसके अंदर कामयाबी है, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है। तो ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों बतलाया कि उलमा इकराम सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हैं? इसलिए कि तालीम और ताल्लुम का उनके पास ज़रिया है, उनके पास तालीम यानी इल्म है। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमाए कराम अंबिया के वारिस हैं, यानी जो काम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अंजाम दिया है उसको जारी और सारी रखने के लिए ये है उलमाए कराम है, यानी दावत व तबलीग, लोगों को सिखाना, लोगों को अच्छी बात बतलाना, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बतलाना, इसी तरह से दुनिया आखरत से आगाह करना। ये उलमाए कराम ये क्या है? वारिस हैं अंबिया के। उलमाए कराम अंबिया के वारिस हैं, यानी दीन का सिलसिला अब अंबिया के ज़रिए नहीं, अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया और अब उलमाए कराम का सिलसिला है और ये क़यामत तक दीन की दावत देते रहेंगे। तो यहाँ पे बिलखुसूस उलमाए किराम की एक तो जिम्मेदारी भी मालूम होती है और दूसरी चीज़ उसकी फजीलत भी कि उलमाए किराम सबसे अल्लाह से डरने वाले हैं और इसी तरह से अंबिया के वारिस हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ अहादीस के अंदर आप तालिब इल्मों का देखेंगे, उसकी फजीलत है, आलिमों की फजीलत है, या इसी तरह कुरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे। बहरहाल दीन ये सीखना ज़रूरी है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन व नसीहा, और इसी तरह से कहा कि हर मुसलमान मर्द और औरत को दीन सीखना चाहिए या उसके ऊपर दीन का सीखना ज़रूरी है। तो ये सब अहादीस का मफहूम है जिससे पता चलता है कि मुसलमानों को सबसे पहले दीन है, उसके बाद जो है दुनिया है। दीन अगर नहीं है तो दुनिया की कोई भी तालीम हासिल कर लें उसकी कोई अहमियत नहीं अगर दीन नहीं है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान करीम को सीखता है और दूसरे को सिखाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, आप दुनिया का कोई भी सर्टिफिकेट हासिल कर लें, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फिलासफर हैं, आप दुनिया के किसी भी डिग्री के जो है हामिल हैं और कोई भी डिग्री आप बड़ी से बड़ी डिग्री आपके पास है, लेकिन अगर इस्लाम नहीं है, कुरान नहीं है, तो आप बेहतरीन नहीं हैं, आप बेहतरीन नहीं हैं।
لیکن اسلام نے منع نہیں کیا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، آپ انجینئر نہ بنیں. کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی قرآن کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو ساتھ رکھتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو دیجئے اور قرآن کی تعلیم لیجئے، سیکھیے اور سکھائیے. یہ سیکھنے والا بھی سب سے بہترین اور سکھانے والا بھی سب سے افضل اور سیکھنے والا بھی سب سے افضل. تو دین کا سیکھنا یہ جو ہے بہت ہی اس فضیلت کے، بہت ہی اس کی اہمیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سب سے بہتر ہے، انجینئر سے بھی بہتر، ڈاکٹر سے بھی بہتر، دنیا کی کوئی بھی تعلیم ہے اس سے بہتر قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بالخصوص ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی پیشہ اختیار کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو حلال پیشہ ہے آپ اختیار کیجئے. آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ صرف جو ہے مسجد یا مدرسہ ہی کو لازم پکڑیں، لیکن دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، کوئی بھی حلال کام کریں، رزق کمائیں، لیکن آپ اپنے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں. آپ جہاں پہ بیٹھے ہوں دین کو سکھائیے اور خود بھی سیکھیے، آپ کتابوں کو پڑھیے، آپ جو ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں تقریر وغیرہ کو سنیے اور دوسرے کو سنائیے. یہ سب سے بہترین چیز ہے. قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ماحول اور معاشرے کے اندر شرک، بدعات، بہت سارے خرافات، جہالت، یہ ساری چیزیں قرآن اور دین کی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیے، آپ دیکھیں گے آیت الکرسی کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس کو پڑھ کے سو جاتا ہے اس کے پاس جو ہے حافظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگراں باڈی گارڈ مقرر ہو جاتا ہے. آج سوتے ہیں تو کتنے لوگ آیت الکرسی کو پڑھ کے سوتے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ عالم علماء جو ہے یعنی عوام الناس کو بتلانا چاہیے، یہ ہم کو سیکھنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کو پڑھنے سے اور معلوم کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. کیا ہمارے بچے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں؟ کیا تلاوت کرتے ہیں؟ ہم خود اپنے گھر کے اندر، جس گھر کے اندر رہتے ہیں یا ہمارے بچے رہتے ہیں، اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے؟ اس پہ غور کرنے کی بات ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگ فارغ ہو کر کے جب فراغت کر لیتے ہیں تو فراغت کے وقت میں ہمیں چند قواعد دیے جاتے ہیں، چند اصول دیے جاتے ہیں، جس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو رٹتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے سے زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم دوسرے مشغلہ کے اندر لگ جاتے ہیں تو وہ چیز ہمیں معلوم نہیں ہو پاتی ہے. پڑھنے کے بعد، تخرج کے بعد، فارغ ہونے کے بعد ہمیں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس ایک عمر کی حد بھی ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ساتھ ساتھ اس وقت میں ہمیں بہت ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آتی ہے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین وہ چیز ہے کہ جس کے سیکھنے سے، سکھانے سے کبھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے جگہ جگہ تعلیمی مراکز کھولے گئے. اور ایک زمانہ تھا، آپ دیکھیں گے لوگ بچوں کو بکریوں کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، گھاس کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، بھینس پالا کرتے تھے، کیونکہ اس کے دودھ کو بیچ کر کے اپنے معاش کو، اپنے جو ہے پیٹ کو بجھاتے تھے. تو یہ جو ہے مشغلہ تھا، لوگوں کے اندر تعلیم کا کوئی یعنی سجھاؤ دینے والا نہیں تھا. لیکن بعد میں شروع کیے گئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں تک لوگوں کے اندر سمجھداری آئی ہے ماشاءاللہ کہ پھر بچیوں کو، کہ ہمارے ماحول معاشرے کے اندر تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 1% بھی جو ہے عورتیں پڑھی لکھی نہیں تھیں، 0.5% بھی کہنے نہیں تھی. لیکن لوگوں نے سلسلہ شروع کیا اس جہالت کو مٹانے کے لیے، اور کہاں کشن گنج اپنے بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا، جھنڈا نگر، اسی طرح سے مئو، اسی طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں چندن بارہ وغیرہ، یعنی دور دراز. لیکن الحمدللہ اس وقت میں ہمارے قریب میں بہت سارے مراکز ہیں، بہت سارے مدارس ہیں. ہم دین کو سمجھیں کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، تو اپنے بچوں کو بالخصوص ہم نہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر کوئی تعلیم دے دیتے ہیں اور دنیاوی تعلیم سے ہم مالدار ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی عیش و عشرت کی کٹ سکتی ہے.
اگر بچے پڑھ لیتے ہیں تو کیا پتہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کے ہمارے بچے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جس کو ہم نے محنت و مشقت سے کمایا ہے چند سالوں کے اندر چند مہینوں کے اندر پھونک دیں گے, ہمیں نہیں پتا ہے. لیکن دینی تعلیم وہ تعلیم ہے کہ اگر آپ بچے کو دینی تعلیم دیتے ہیں تو ضرور آپ کے بچے آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے. نماز کے اندر, نماز کے بعد, دوسرے اوقات کے اندر ہمارے لیے ہم جو ہے دعا کریں گے. وقتاً فوقتاً ہمارے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنیں گے. کم سے کم وہ اگر جو ہے بچے کچھ کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, صدقہ خیرات کریں گے دین کو سمجھ کر کے, اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں. بالخصوص بہت سارے بچے ابتدائی مراحل کے اندر پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھائی کو چھوڑ دیتے تو بہت سارے لوگ پہلے ہی کی طرح, جس طرح سے, کیونکہ بچپنا ہوتا ہے, جس طرح سے بغیر پڑھے ہوئے تھے اسی طرح سے چند سال کے بعد ایسے ہی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی جو ہے یعنی لائے عمل نہیں ہوتا, ان کے پاس جو اتنی تعلیم نہیں ہوتی کہ پھر ابھر کر کے آئیں. تو اسی لیے جو ہے مراحل رکھے گئے, ثانویہ, عالمیہ, فضیلت, تاکہ آدمی جو ہے عمر کے ساتھ ساتھ پڑھتا رہے, دین کو سمجھتا رہے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو سمجھاتا رہے. تو یہ جو مراحل کو دیکھتے ہوئے ہمارے علاقے میں بالخصوص اس طرح کا مرکز نہیں تھا جہاں پہ فضیلت تک کی تعلیم ہو, ثانویہ عالمیت تک کی جو ہے تعلیم ہو رہی تھی. اور ہم لوگوں نے تقریباً 21-22 سال پہلے 1420 میں مرکز کا قیام ڈالا تھا اور کرائے پہ جو ہے چلا رہے تھے, اور یہی جو ہے امنگ لے کر کے, یہی جو ہے آرزو لے کے آگے بڑھے تھے کہ اس کو فضیلت تک بنائیں گے, کیونکہ جہاں پہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہاں پہ اختلاف ہونے کی وجہ سے کچھ اس طرح سے نہیں تھا. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اس کو جو ہے سینچا جائے, اور الحمدللہ تقریباً 20-21 سال یا 22 سال سے تقریباً جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے, کبھی منقطع نہیں ہوا. لیکن کچھ کمی اور کمزوری رہی, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص یعنی ادارہ کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے, چاہے وہ علاقائی ہو اور چاہے جو ہے آپ یعنی خارجی ہو, اس کے سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ سپورٹ چونکہ کچھ ماحول ایسا بن گیا تھا ہمارے علاقہ کے اندر کہ سپورٹ حاصل کرنا اور سپورٹ کا جو ہے ہونا یہ جو ہے کچھ مشکل تھا. لیکن الحمدللہ اس دور کے اندر نوجوانوں نے جو ہے شروع کیا ہے اس چیز کو کہ آپس کے اندر ہم متحد ہو جائیں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں. اور ہماری جو آرزو تھی اس کے اندر خاص طور سے مقصد حیات کی ٹیم جو دعوت و تبلیغ کے لیے یہ ٹیم کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے جو ہمیں حوصلہ دیا اور کہا کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تعاون کریں گے اور آپ بڑھائیے, اور اس طرح سے آپ کا ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, فضیلت تک قائم کیجئے. تو ہم نے اس حوصلے کو پا کر کے, اس ہمت افزائی کو پا کر کے ہم نے بھی جو ہے کمر کو باندھا کسا, اور ہم نے سوچا کہ علاقہ کی ضرورت, اور اس وقت میں بالخصوص اس لیے کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے بچے پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی تک جاتے جاتے تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں, یا ثانویہ کے بعد کہیں اتنے وسائل ان کے پاس نہیں ہوئے, علاقے سے باہر نہیں نکل سکے, نہ کرایہ, نہ اسی طرح سے اور جو ہے پہنچانے والے, نہ اسی طرح سے یعنی بہت ساری دشواریاں, راستے کی دشواریاں, مالی دشواریاں, اور بہت سارے یعنی کیا کہتے ہیں رکاوٹ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علاقہ کے اندر میں نے سوچا کہ اس کا قیام کیا جائے, فضیلت تک تعلیم دی جائے, اور اس کے لیے ہم نے جو ہے باضابطہ تیاری کر لی ہے, اور اچھے اساتذہ وغیرہ کی بحالی بھی ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ جو ہے تعلیم کا آغاز کرنے ہی والے ہیں. جیسا کہ اعلان میں آپ نے دیکھا ہوگا, بس چند حکومت کی وجہ سے جو, یا کہہ لیں کہ وقت کی وجہ سے, جو کرونا کا ماحول ہے اس کی وجہ سے تعلیم کے اندر تاخیر ہوئی, ورنہ ہم لوگ شوال ہی کے اندر شروع کرنے والے تھے اس چیز کو. اور جو بھی ہے اللہ کی مصلحت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے, اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے کوئی چیز خالی نہیں, جو بھی حکمت ہے, بہرحال جو ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو آغاز کیا جائے. بس آپ لوگوں سے ہمیں حوصلہ کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے. آپ ہر طرح سے ادارہ کو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری جو ہے آپ تائید کریں, یا آپ جو ہے
क्या करें, मेरी मदद करें, आप इदारा को किस तरह से इदारा को उठा सकते हैं, किस तरह से इदारे को चला सकते हैं, किस तरह से उसकी ताउन कर सकते हैं, बच्चे दे करके, बच्चे को खुद कफील बना करके। क्योंकि आप जानते हैं कि इस हालात के अंदर बड़े बड़े इदारे जो है कमजोर हो गए हैं, बड़े बड़े इदारे बंद हो गए हैं, और इस वक्त जो है इलाकाई माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को बहुत हिम्मत, बहुत सकत, बहुत मालो दौलत, बहुत सारी चीजों से नवाजा है। पहले का जमाना था, गांव के अंदर 2-4 ऐसे लोग होते थे जो ज़कात निकालते थे, जिनके पास जो है ज़कात निकालने की ताकत थी या वो निसाब को पहुंचते थे। लेकिन इस वक्त के अंदर अल्लाह के फजल करम से बिला मुबालगा हम कह सकते हैं कि 70 से 80% लोग ऐसे हैं कि चाहे वो धान हो या गेहूं हो या गल्ला अनाज हो या पैसा हो या ज़ेवरात हो, ज़कात की यानी निसाब को पहुंच जाते हैं। 70% लोग ऐसे हैं। रह गई बात कि उनको बतलाना, उनको माइल करना, उनको उभारना, ये हमारे उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। और हम पिछले सारे शिकवा और गिला को भूल जाएं। हमने जो कुछ हमसे या हमारे लोगों से कोताहियां हुई है, यानी गफलत हुई है, और जो कुछ भी जो है शिकवा शिकायत है, उसको हम बंद करें, उस दरवाजे को बंद करें, और जो हमारे लिए बेहतर हो सकता है उसको सोचें। अगर हम उस चीज को दोहराते हैं तो यकीनन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आगे की तरफ देखते हैं, और जो लोग उठे हैं, और मैं बिलखुसूस मैं कह रहा हूं कि मैं यानी हमारी जो मरकज फुरकान के जो भी जो है रुकन है, मैं तो सारे लोगों को समझता हूं, बल्कि जो है इसमें जो है इलाकाई लोग अहम किरदार अदा करते हैं और हमेशा ताउन रहा है। इस सिलसिले में आप देखेंगे जड़िया से ताउन, ठीला से ताउन, और इलाका के सारे गांव से जो है बच्चों से लेकर के और अगहन फसल जो है वगैरह से हर तरह के ताउन लोगों ने जो है किया है, और उसी की वजह से कायम दायम है। खारजी तो आप जो जानते हैं हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। बहरहाल आप लोगों की तरफ से ताउन की जरूरत है, और जो भी चीज फीस लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, तो आप मुझे मेरा नंबर लीजिए, उस पे जो है आप बतलाइए कि ये चीज गलत है। फीस का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं से, आप जानते हैं बाहरी दुनिया के अंदर रहते हैं, कि कहीं से कोई मनो सलवा उतर रहा है और जिसको हम जो है लोगों के अंदर तकसीम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी है वो आपके बच्चों पे खर्च किया जाएगा, उससे तालीम का मियार बढ़ाया जाएगा। अगर आप उसके अंदर अपने बच्चों पे खर्च करने में कंजूसी करते हैं तो जाहिर बात है अपने बच्चों का नुकसान होता है। हम अच्छे मुदर्रिस नहीं दे पाएंगे, हम इसी तरह से अच्छा जो है रहन सहन नहीं हो पाएगा, खुराकी। लेकिन अगर हम थोड़ी सी जो है जानने सारी से काम की, जो बच्चे को हम घर में खिलाते हैं अगर वही मरकज में खिलाएं, जो ताउन हम अपने जान से अपने बच्चों पे करते हैं, वही ताउन का जज्बा अगर हम अपने बच्चों को मदरसे में रखें, मरकज में रखें, तो इंशाअल्लाह इसके अंदर कोताही नहीं होगी। हमारे बच्चे अच्छे निकल सकते हैं, दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी लेके निकल सकते हैं। इस सिलसिले में मरकज के अंदर हमने, ताकि बच्चे जो है पढ़ने के बाद कहीं इधर उधर न भटकें, इस सिलसिले में भी हमने सोचा है। और उसके लिए मुख्तलिफ जो है हमने सोचा है कि कुछ जो है तनमीयतुल महारात जिसे कहते हैं, यानी टेक्नोलॉजी वगैरह, यानी जो भी है हम शुरू करेंगे उसको भी जो है, जैसे कंप्यूटर का कोर्स है, या इसी तरह से आप जो है कह सकते हैं हिसाब वगैरह का, यानी कुछ कोर्स है, कुछ डॉक्टर वगैरह से जो है कह करके मतलब जो है उससे कुछ सीखना चाहे कोई जो है, या इसी तरह से जो है प्लम्बर का है, प्लम्बर का जो है कोर्स कराएंगे, या इसी तरह से जो है सिलाई का है। यानी कुछ ना कुछ जो है चंद बच्चों को मराहिल के साथ इस मरहले में ये हो, लेकिन उसके लिए बतदरीज हमें काम करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह इस चीज को हम जारी रखेंगे ताकि निकलने के बाद हमारे बच्चे माश के तौर पे, माशी तौर पे बिल्कुल ये ना सोचें कि हम बिल्कुल जो है मौलवी होकर रह गए, बल्कि मैंने कहा कि दीन को अलग, यानी अलग करे, माश को अलग करे, दीन के साथ माश को न जोड़े कि ये दीनी तालीम हमने हासिल किया है और हमें माश का जो है इसके अंदर तंगी का सामना है, ऐसा ना सोचे। बल्कि आप पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाएं, और आप अगर दावत देना चाहते हैं दावत दें, चाहे वो जो है सैलरी पे हो या ऐसे लिल्लाह फिल्लाह ततव्वो हो। दूसरा जो है मशगला आपके पास हो, आप कहीं जो है टेलर खोल लें, पढ़ने के बाद जो है आप सिलाई जानते हैं, कहीं पे टेलर खोल लें, कहीं पे आप जो है
अगर प्लम्बर का काम सीख लेते हैं, एक दो आदमी को खुद ही प्लम्बर का काम करें, एक दो आदमी को रख करके अल्लाह ताला ने दिया है प्लम्बर का सामान रखें, आप मटेरियल्स वगैरह रखें, इसी तरह से आप सेटरिंग वगैरह, यानी मतलब यह है कि दिमाग खोल दिया जाए मदरसे के अंदर, ताकि बाहर बच्चे निकले तो उसको काम करने का हुनर हो और इंसान के जहन के अंदर खुदा और पालान हो कि इस काम को हम कर सकते हैं, इस चीज को अंजाम दे सकते हैं और हमारे लिए माश और रिस्क के अंदर तंगी नहीं आएगी और दीन को हम आसानी के साथ अपने घर के अंदर और अपने माहौल और माशरे के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने जिले के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर उसकी नशर इशाअत कर सकते हैं, चाहे वो आप जो है बिलमुशाफा हो या इसी तरह से यूट्यूब और टेक्नोलॉजी जो भी है नए जो है इजादात उसके जरिए से हो। आप कुछ वक्त देंगे, आप कुछ करेंगे, जिस तरह से इखवान वगैरह कर रहे हैं और बल्कि बहुत सारे इखवान जालियात के जरिए से कर रहे हैं, कोई किसी मरकज के तहत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है इसी तरह से इनफरादी तौर पे भी शुरू किया है और बहुत सारे लोग एक क्लिप ही को जो है दूसरे में भेज देते हैं, दावत व तबलीग का जो है जरिया है, तो उसके लिए बहुत सारे वसाइल हैं। तो ये जो है चंद चीजें थी जिसको मैंने रखा है, चूंकि वक्त कम है और फिर सवाल जवाब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलखुसूस हमें मुत्तहिद होने की तौफीक दे और हमारे अंदर जो गिला शिकवा है भाईचारगी से निकाल दे। आखिर में जो है जो भी होगा इंशाल्लाह बाकी दुआएं करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलिए माशाल्लाह, बड़ी तफसील के साथ आपने तालीम के ताल्लुक से बयान दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और हमारे इलाके के अंदर जिस चीज़ की कमी थी अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा करने की तौफीक दे। इसके ताल्लुक से अगर किसी भाई के पास कोई सवाल हो तो ज़रूर करें, क्योंकि इसके बाद मैंने शेख मुश्ताक को नज़म पढ़ने की दावत दी है। तो अगर आप लोग जो है कोई सवाल करना चाहें फजलत की तालीम के लिए, हमारे सनाउल्लाह साहब। बाद में कर देना, नमाज के टाइम हो जाएगा, फिर मैं नमाज के लिए चला जाऊंगा अजान के लिए। चलिए एक नज़म सुनाइए पहले, उसके बाद बात करते हैं हम भागा आपस में। चलिए सुनाइए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नज़म समाअत फरमाएं। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्रे खुदा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्रे खुदा कीजिए। साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, उसकी उल्फत में इसको अदा कीजिए। साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, उसके उल्फत में इसको अदा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्र खुदा कीजिए। मरने वालों को क्या तूने देखा नहीं, क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं। मरने वालों को क्या तूने देखा नहीं, क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं। क्या हमें भी इसी तरह जाना नहीं, क्या हमें भी इसी तरह जाना नहीं। मेहरबान गौर इस पे जरा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्र खुदा कीजिए। जाके दुनिया से फिर कोई आता है क्या,
जाके दुनिया से फिर कोई आता है क्या, कब्र में साथ कोई भी जाता है क्या, कब्र में साथ कोई भी जाता है क्या, ऐसी दुनिया के खातिर मरूं किसी लिए, ऐसी दुनिया के खातिर मरूं किसी लिए, क्यों न तामील हुक्म खुदा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्रे खुदा कीजिए, कब्र कहती है गाफिल मुझे भूल मत, एक दिन इसमें आएगा सब छोड़ कर, एक दिन इसमें आएगा सब छोड़ कर, दम गनीमत है करना जो नेकी बने, दम गनीमत है करना जो नेकी बने, जब कज़ा है तो इसको अदा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्रे खुदा कीजिए, साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, उसके उल्फत में इसको अदा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त नज़म आपने सुनाया, और बल्कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ आपने नज़म सुनाया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने आखिरत से भी डराया, कब्र से भी डराया, और आदमी को किस तरह जीने का सलीका बहरहाल सारी चीज़ें आपने बताई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और अब इसके बाद जो है, मैंने शेख सनाउल्लाह करीमी साहब का मैंने ये खोल दिया है। आपकी आवाज़ अब हम तक आप आ जाएगी। तो अब अगर आप भी जो है अपने यहाँ कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इससे पहले तो शायद मदरसा न खुला था, इसलिए जो है आपने किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अभी भी क्या है आप लोगों का इरादा या क्या कर रहे हैं, अगर हमारे ख्याल से हम लोग मिल बैठ करके इस बात को हल करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, क्योंकि आप सब जो है गहल जिम्मेदार हैं और मकसद हयात से जुड़े हुए हैं, और फुरकान से भी जुड़े हुए हैं। अभी दिन गए, आपको वहाँ पे लोग नहीं मिले, और उन्हें जो वहाँ का जो उज़्र था उन्होंने पेश भी किया कि वो उस दिन चले गए थे, क्या कहते हैं, तालीमी के सिलसिले में कहीं और चले गए थे। तो बहरहाल इस ताल्लुक से आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है? जी, उससे पहले आप तो आज आपको खुतबा का भी ये दिया गया था, मुख्तसर अगर आप चाहें तो उसके ऊपर भी कुछ हमें बताएं। नहीं, खुतबा के लिए असल में शेख खबीर रहमान साहब आ गए, उस टाइम में क्या कि एक मजमून मिल गया है, इसलिए आप दूसरे जमा कर दीजिए, इसलिए मैं आज नहीं कर सका, उनको दे दिया हूँ। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आइंदे जुमा को हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो जैसे शेख क्या कहते रहीम साहब बोले हैं, समझे ना, उसमें मैं एक इजाफा करना चाहता हूँ, जैसे कि तालीम को और तिजारत को एक साथ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला के फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, इसमें क्या कहते हैं, तालीम और तिजारत दोनों साथ साथ में, इबादत और तिजारत दोनों साथ साथ में है। असल हमारा मुश्किल क्या है, जितने भी उलमाए किराम हैं, इनका असल मुश्किल क्या है, वो समझते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ फिर हम मौलवी ही बनेंगे, और हमारे मौलवी के अलावा हमारा कोई काम ही नहीं है। ये सुस्ती जो है ना सबसे ज्यादा उनके लिए परेशान कौन है। और हमारे बच्चे जो है मदरसा में पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि घर का काम क्यों करें, खेती बाड़ी क्यों करें, दुकान में क्यों जाए, ये करें। ये चीज है, असल हमको माइंड में ये बच्चों को ये सेट करना है, सिर्फ मौलवी साहब होने से उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ऐसा नहीं है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, घरेलू जिम्मेदारी है, क्या कहते हैं, इबादत है, रियादत है, क्या कहते हैं, घरेलू मामलात है, सब कुछ है। बहरहाल
मैं जो अभी बच्चों का जो शुरू कराया था, जो बाहरी बच्चे जो पढ़ रहे थे हमारे यहाँ पढ़ ही रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस शनिचर से शुरू था और चल रहा है अभी। लेकिन जैसे मैं कल ऐलान पढ़ा हूँ क्या कहते हैं फुरकान के लिए, मैं बात किया हूँ यहाँ से, जब तालीमी सिलसिला शुरू हो जाता है कितना का लिस्ट मैं ले रहा हूँ, और उन तमाम बच्चों को मैं कहा हूँ कि जो बच्चा जाना चाहते हैं, कुछ बच्चा ऐसा है वो समझते हैं कि मैं जनकपुर में नहीं जाऊंगा, घर पे भी नहीं जा रहा है, वहां पढ़ने के लिए भी नहीं जा रहा है। कुछ करीब 15-16 बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं अभी, जो बाहरी बच्चे पढ़ रहे थे, पहली से लेकर के चौथी पांचवी तक है। मैं उन लोगों से बात किया हूँ, कहा कि ठीक है, कुछ ने कहा कि हम जाएंगे, कुछ ने कहा कि नहीं हमारा ऑनलाइन पढ़ाई हो ही रहा है, कोई कहता है कि हमारा मदरसा खुलेगा, जहाँ पढ़ते थे हम वहीं आएंगे। बहरहाल जिसको जहाँ जाना होगा कोई रोक तो नहीं सकता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जिस तरह से है ना कि ये अल फुरकान के बारे में हम लोग कोशिश ये है कि कहीं भी अगर हमारा इलाकाई बच्चा एक साथ में एक जगह बैठ करके पढ़े, हमारे लिए इससे बेहतर कोई हल हो ही नहीं सकता है। हमारे बच्चे यहाँ नहीं होने की वजह से बाहर जा रहे थे। जब हमारा गांव या हमारे यहाँ जनकपुर समझे हमारे घर गांव की तरह से, किसी भी 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा जा सकते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद में जिस तरह से अभी तक जो फुरकान का मैंने नतीजा पहले देख चुका हूँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलाकाई बच्चे पूरे इलाकाई बच्चे हैं, वहां जाते हैं, हफ्ता में जो है 2 दिन वहां पर रहा, 4 दिन बाहर ही घूम रहे हैं, घर पे आ रहे हैं। इस तरह से निजाम वहां पर की सख्ती करने के लिए, और अच्छे अच्छे उस्ताद है माशाअल्लाह। अभी मैं गया नहीं हूँ, इंशाअल्लाह कल दीपावली है और परसों कोशिश है कि मैं जाऊँ आप वहां पर और उन लोगों से भी बात करूंगा। मेरी कोशिश यही होगी तमाम आदमी मिल करके मकसद हयात के हों और जो में। दूसरी बात है कि फुरकान वाले के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि जैसे हम लोग एक बार काठमांडू में गए थे, थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा माफ कीजिएगा, काठमांडू में साहब से एक शायद वो क्या कहते पश्चिम वाले, उनसे बात हो रही थी, तो हम लोग कहे कि शेख पहले जमाना में लोग कहीं पर से आलिम आते थे, तमाम लोग बगैर कहे हुए सुनने के लिए आते थे, लेकिन अभी कोई आते हैं तो जो बैठे भी रहते हैं वापस चले जाते हैं। इसका ये क्यों ऐसा हो रहा है? मदरसा हमारे यहाँ काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इतने पीछे हैं, या लोग हमको इतना बदनाम कर रहे हैं। इसका असल सबब क्या है कि हमारी खुलूसियत, हमारे दिल के अंदर कौम को तरक्की करना या कौम के एक बच्चों को पढ़ाना या इस्लाम की खिदमत करना नहीं है। एक दुकानदारी है, जैसे कोई एक बड़ा दुकान खोलता है, एक बड़ा छोटा दुकान खोलता है, जिसकी चल गई वो अच्छा है, जो नहीं चली वो बंद कर दिया। इसी तरह लोग आज मदरसे को बना चुके हैं। तो हमारा मकसद जब कौम की खिदमत होगा तो इंशाअल्लाह लोग हमारे पास आएंगे, और हमारे पास ये जब बच्चों की तालीम अच्छी होगी, लोग दूसरी जगह से उठा करके बच्चों को लाएंगे यहाँ पर। ये तजर्बा है हमारा। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ बेहतरीन तालीम हो, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो, और हमारा मकसद दीन की खिदमत हो, जो न कि हमारे पेट की खिदमत हो, अपने जेब भरने के लिए नहीं, दीन की खिदमत के लिए। मेरी कोशिश, मैं अपने यहाँ पे सबों को कहता हूँ, मैंने भी कहा कि भाई मैं सदका खैरात खा करके मैं पढ़ा हूँ, क्योंकि हमारे माँ बाप ये पढ़े लिखे नहीं थे, हम बाहर पढ़े, वजीफा मिला, हमको नहीं वजीफा मिला, दूसरे में गए वहां पर वजीफा मिला। हमारी हालत माशी हालत कमजोर थी, हमारे अब्बा ने जिस तरह चाहा हमको पढ़ाया। मेरी कोशिश है, अल्लाह ताला ने दिया है, हमारे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो मैं मदरसे वाले से बात मैं बात करता हूँ, इनका खुराक कितना होता है महीने का, मैं आपको दूंगा। अगर वहां भी देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 2 बच्चा मेरा अगर बाहर पढ़ रहा है, मैं किसी गरीब 2 बच्चों की मदद करूँ। अगर आप जैसे फुरकान में आपके कोई 2 बच्चा गरीब है, जो बहुत ही नादार गरीब है, मैं कोशिश करूंगा कि ये की मैं कफालत करूं, ताकि हमारा बच्चा जो बाहर पढ़ रहा है, जो उसको मिल रहा है, ये सहूलत मैं वहां पर दे दूं, ताकि हमारे ऊपर गुनाह नहीं आए कि भाई आपको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया, आपका बच्चा फ्री में पढ़ रहा है। तो मैं भी कोशिश करूं कि किसी की और गरीब के बच्चा को मदद कर दूं, ताकि वो भी पढ़ ले। इस तरह का जज्बा होना चाहिए सबों में, और ये उभार होनी चाहिए, ताकि गरीब का भी बच्चा पढ़े और अमीर का भी बच्चा पढ़े। और मदरसा में खास करके ये शर्त लगाया जाता है बड़े बड़े अदारा में कि फना साहब से आपके गांव में है, फना साहब से लिखा कर करवाइए फिर दाखिला होगा। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके करीबी लोग होते हैं, उसे यह लिख दिया जाता है, जो भी चाहते हैं लिख दिया जाता है, जो गरीब का बच्चा कोई लिख कर देता नहीं है। वहाँ म्यार होना चाहिए, क्या तालीमी म्यार। आप इंटरव्यू लीजिए, अगर कामयाब है उसको दाखिला लीजिएगा किसी शराइत के। अगर अमीर का बच्चा है, अगर कामयाब नहीं है, आपकी शराइत के मुताबिक कामयाब है, उसको दाखिला नहीं दीजिए। तो हमारी यही बात थी, इसके ऊपर कोशिश की, और मेरी कोशिश हमारे तरफ से जितनी भी मदद की होगी इंशाअल्लाह मैं हमेशा हाजिर हूँ और करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप की तरफ से ही हमें उम्मीद है, और माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक किस्म के आदमी है, नौजवान है, और आप हिम्मत और हौसला वाले आदमी है। अल्लाह को जज़ाए खैर दे। सवाल तो ये था शेख साहब, सवाल शायद बीच में अगर समझ पाए हो, तो सवाल ये है कि वहाँ पे जो तालीम जो हासिल करने के लिए जो बच्चे जाएंगे, उनके लिए क्या आप बता रहे थे कि कोई ये नहीं हो कि किसी का
درخواست چاہیے تو کسی بڑے آدمی کا سفارش چاہیے. ایک تو یہ ہو کہ ایسا نہ ہو. جیسے دوسری بڑا چیز بڑا یہ ہے کوئی نہیں، جیسے کوئی برائے دادا ہے، جیسے ہم لوگ وہاں پر جیسے جامعہ کہ احمدیہ سرفیہ میں گیا تھا داخلہ لینے کے لیے، کہا کہ آپ اپنے یہاں جائیے، جیسے شیخ خبیر الرحمان صاحب ہیں، مولانا عبدالقیوم صاحب ہیں، مولانا منظور صاحب ہیں، ان لوگوں سے آپ درخواست لکھوا کر کے لائیے کہ آپ کو کفالت چاہیے یا وظیفہ چاہیے. میں وہاں سے چھوڑ کر کے آ گیا، کیونکہ میں کہا کہ میں تینوں کے پاس جاؤں گا، مجھے نہیں دیں گے وہ لوگ، کیونکہ ہمارے رشتے دار نہیں، ہمارے قریبی نہیں ہیں. جب نہیں دیں گے تو ہمیں تو میرا داخلہ ہوگا نہیں، اس لیے میں وہاں سے چھوڑ کر کے آ گیا. چلیے. دوسری بات یہ تھی کہ تجارت اور یہ دینی تعلیم اور تجارت کیا یہ الگ الگ ہے؟ یہ ان کا 2 سوال تھا. شیخ عبدالرحیم صاحب اس کا مختصراً جواب دیں. جی پہلا سوال کہ تجارت اور عبادت یا تعلیم یہ الگ الگ چیز ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ اصل تعلیم کو یا دینی تعلیم کو یہ تجارت نہ بنائیں یا اسی کو تجارت نہ سمجھیں کہ یہی میرا پیشہ ہے، پیشہ نہ بنائیں، پیشہ سمجھ کے نہ پڑھیں. اگر جو ہے اسی ماحول میں پڑھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی الگ الگ سمجھے. مطلب جو ہے طلب معاش کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم کا ہونا، یہ علم کا ہونا یہ طلب معاش ہے، ایسا نہ سمجھے، بلکہ آپ علم کے ذریعے سے چاہیں تو پڑھائیں، اسی کو جو ہے اپنا پیشہ بنائیں، چاہیں تو دوسری چیز میں بھی لگا سکتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں، کوئی تجارت نہیں کر سکتے ہیں. یہ میرے کہنے کا مطلب تھا. آپ پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو ایک آزاد سمجھیں کہ حلال جو بھی کام ہے، تجارت جو بھی ہے ہم کر سکتے ہیں، ہم آزاد ہیں. اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں کہ ہم نے جو ہے فراغت تک تعلیم حاصل کر لی ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی جو ہے ٹوکڑا اٹھاتے ہیں یا کوئی جو ہے ٹھیلا جو ہے یہ کرتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں تو لوگ مجھے جو ہے مایوب سمجھیں گے. ایسا نہیں، بلکہ جو بھی آپ کام کر سکتے ہیں جس کے اندر بھی فائدہ ہے طلب معاش کے لیے، آپ کیجیے. بہت سارے فیس بک پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ہم پڑھ لکھ لیے، اب جائیں یہ کام کرنے کے لیے، ہل جوتنے کے لیے. میں بتلاتا ہوں، میں مدینے میں پڑھتا تھا، اس وقت میں ہل جوتا ہوں. مدینے میں جس وقت میں پڑھتا تھا اس وقت میں کدوا ہل جوتا ہوں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. آدمی کوئی بھی کام کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کام کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کو یہ نہ سمجھے، عیب کی بات نہ سمجھے. لیکن یہ ہے کہ جو پڑھے ہیں اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کر کے اس کو بالکل اس راستے کو بند نہ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، کہیں امامت کا کام کرنا ہے، کہیں خطابت کا کام کرنا ہے، اس کو جو ہے جاری اور ساری رکھنا ہے. یہ کہنے کا مطلب تھا اور یہ چیز اپنانا چاہیے. دوسرا سوال، ہاں بولیے. جی دوسرا سوال یہ تھا کہ جس طرح سے لوگ فوقیت دیتے ہیں کہ علاقہ کے لوگوں سے لکھا کے لائیے، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو گاؤں کے عالم ہوتے ہیں، ثناء اللہ صاحب نے بہت اچھی بات جو ہے بتلا ہے، تو وہ لکھ دیتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر کے جن سے جو ہے زیادہ تعلق ہے، خزانچی ہے، صدر ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو ایسے بچوں کی سفارش کر دیتے ہیں، یا گاؤں کے جو ہے لوگ، اور اسی طرح غریب لوگ جو محروم ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیز بالکل قطعی طور سے نہیں ہے. آپ کبھی کا بھی ریکارڈ لے جائیں گے، ایسا نہیں کہا کہ فلاں سے لکھا کے لاؤ. بچے کا امتحان ہوتا ہے اور 2-4 سوال ہوتے ہیں جو میں نے جو ہے شیخ کلیم صاحب کو بتلا دیا ہے کہ آپ ان کو پوچھیں کہ تمہارے جو ہے والد کہاں رہتے ہیں، باہری اس میں خارجی میں، یعنی آمدنی کا ذریعہ پوچھتے ہیں کہ کہیں باہر رہتے ہیں، نہیں ہے تو بھائی ہے. تو اس طرح سے پوچھتے ہیں، چند سوال پوچھتے ہیں جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کتنے دن سے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح سے، کس چیز کا گھر، یعنی چند سوال ایسا ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا معاش کیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے ادھر سے غلط رپورٹ نہ دیں یا غلط لکھا کے نہ لائیں، بلکہ خود بچے ہی سے پوچھا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں جانتے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ان کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے. چلیے ماشاءاللہ. اور ہم لوگوں کا ارادہ بھی یہی ہے کہ مدرسے میں جو پڑھائی ہو تو ساتھ ساتھ بچوں کو تجارت کا علم بھی، تجارت کا ہنر بھی انہیں دیا جائے، انہیں سکھایا جائے. اس کے لیے ہم نے شیخ عبدالرحیم سے، سلیم ساجد سے میں نے بات بھی کی تھی کہ آپ اپنے مدرسے میں جو ہے جیسے مدینے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ہنر کے تعلق سے، تو وہ چیزیں آپ اپنے یہاں بھی سکھا سکتے ہیں. بلکہ بچے آپ کو پیسہ دیں گے اگر آپ کی کوئی ہنر اچھا سا سکھاتے ہیں، تاکہ بچے اپنا اس سے کما سکے اور اس سے اپنی روزی روٹی کما سکیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو پیسے بھی دیں گے. تو آپ اس طرح سے علم و ہنر والا بنائیے. ایسا نہ ہو کہ بچے جب تعلیم سیکھ کر کے جب نکلتا ہے، فراغت کر کے نکلتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میرا بالکل اندھیرا، میں جاؤں تو جاؤں کیا.
पूरी ज़िंदगी तो कभी हल जोते नहीं, पूरी ज़िंदगी कोई काम किए नहीं, तो अब कहाँ से हम कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो, बल्कि हमको तिजारत भी सिखाना है साथ साथ। और इंशाअल्लाह तबारक तआला मैंने तालीम के तल्लुक से मैंने और भी बात करनी है, बल्कि मैं पूरे इलाके के अंदर में चाहूँगा कि हमारे बच्चे अगर फजलत करते हैं तो फजलत से पहले पहले अगर वो मुमकिन हो तो मैट्रिक भी करें, है ना, उसके बाद आईए भी कर सकते हैं। इस तरह का कोई हम लोग जो है तालीमी सेटअप जो है और निसाब को मुतय्यन करें, ताकि हमारे यहाँ की तालीम जो है वो सरकारी सतह पे भी, हमें यहाँ पे अभी देखिए सल्फिया से कोई एक बच्चा जो है बहुत अच्छे नंबरात लाए हैं, तो वहाँ के जो मसूल है उन्होंने जो है लिख करके दिया है कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, और उन्होंने बहुत तारीफ की है उनकी कि मदरसे का नाम रोशन किया। मदरसे का नाम कब रोशन होगा? जब सरकारी सतह पे भी हम लोग अपना नाम निकाल पाएंगे या रोशन कर पाएंगे, तभी तो होगा। तो उसके लिए हमें अपने निसाब को भी, जो हमारे नेपाली जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटियां हैं, उस ताल्लुक से हमें उन लोगों से बात करके जो है उस अपने निसाब को उसी हैसियत से बनाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि हमारा दाखिला यहाँ से निकले हमारे बच्चे और वहाँ जाके दाखिला हो सके या आला तालीम हासिल के लिए वो आगे पढ़ सके। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और सबसे राय मशवरा हम लोग लेते रहेंगे, और तालीम के निसाब जो है हमको उसमें भी तब्दीली लाते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी एक गुजारिश होगी शेख रहीम साहब से कि मदरसा वालों को बोलिए कि जैसे वो इलाके में घूमें, लोगों से राब्ता रखें। अक्सर वाले जैसे है ना, जामिया सल्फिया के डूबने के कारण यही है कि वो लोग सेल्फिश यानी खुदगर्ज हो गए कि लोग आएंगे हमारे पास में। देखो आप लोगों को चाहिए जो वहाँ के वो को भेजिए, लोग तो आएंगे ही वहां पर, लेकिन कम से कम वो भी हफ्ते में है, महीना में है, इलाका में घूमे, हर जगह से अपनी परेशानी बतलाए, लोगों के हालात को समझे, लोगों के हालात को बतलाए, ताकि लोग समझे कि हमसे राब्ता है लोगों का। ये भी कोशिश होनी चाहिए मदरसे वालों की। जज़ाकल्लाह खैर, आप बहुत सारी बातें बतलाए हैं जो काबिल गौर हैं, और इंशाअल्लाह उसको हम करेंगे। और मैं बतला देता हूं कि बारहा जो है हमने इलाके से जोड़ा है और जोड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इससे पहले भी जो है कई बार जो है आपके गांव के अंदर भी गए, मौलाना अब्दुल साहब वो लेकर के पूरे गांव में, इसी तरह से क्या निसार साहब हैं, उनके भाई निसार ही है मेरे ख्याल में, निसार हैं, उन्होंने भी जो है और बहुत सारे लोगों ने वहाँ ताउन किया। और इसी तरह हर गांव में तकरीबन हम जो है हमारे लोग जाते हैं या मशाइख वगैरह जो है जाते हैं, उलमाए कराम जाते हैं, और तकरीबन जो है इलाका के हर शख्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और कभी भी मैंने नहीं कहा कि इन लोगों से ताल्लुक नहीं रखना है, बल्कि सालाना अंजुमन करते हैं तो जो भी लोग फाल होते हैं तो इस तरह से लोगों को दावत देते हैं और सालाना अंजुमन में हम बुलाते हैं। और बल्कि हमारे अजीज कासिम साहब कई बार हाजिर हुए हैं और देखे होंगे सालाना अंजुमन के मौके से इलाकाई सारे लोगों को तकरीबन जो है, जो यानी आलिम उलमा हैं या इसी तरह से कुछ जो है गिने चुने लोग हैं जो फाल किस्म के हैं गांव घर में, तो उनको भी दावत देते हैं ताकि आकर के मरकज को देखें और मरकज का ताउन करें, और इसी तरह से मरकज उनकी निगाह में हो और उनकी जो है निगरानी में चले। जी चलिए, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। जब हम फजलत की तालीम शुरू कर रहे थे उस टाइम में सबसे पहले मैंने जो बात की थी वो शेख शरीफ तैमी साहब से मैंने बात की थी। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, बहुत हिम्मत दिया, हौसला दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। तो अभी जो है तकरीबन 6 महीने के बाद समझिए हमारे इदारा जो है, जैसे मरकज़ फुरकान से ही वहाँ से हम लोग फजलत की तालीम जो कह रहे हैं शेख मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि शेख शरीफ तैमी साहब, आप तालीम के ताल्लुक से और अपने इलाके से फजीलत की क्या अहमियत और क्या ज़रूरत है, चंद मिनट आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें। शेख फजीलत शेख शरीफ तैमी साहब, खोल दीजिए इनका, ये क्लिक कीजिए ना उस पर, साउंड पे, साउंड पे क्लिक करके खोल लीजिए पहले। नहीं हुआ, साउंड पे डबल क्लिक। हाँ हो गया। अभी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। देखिए, बातें बहुत सारी हैं, मदारिस के अंदर भी बहुत सारी कमियां कमजोरियां हैं। सवाल यह है कि किस कमी को उजागर किया जाए। अगर थोड़ी देर के लिए
कोई कहता है कि दीनी तालीम का मकसद ये है कि बच्चे फारिग होकर के दावत व तबलीग करें। तो मेरा सवाल ये है कि नेपाल में जो दीनी तालीम हो रही है और वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं, क्या मुल्की पैमाने पे उनका कोई असर व रसूख है, या दूर दूर तक कुछ नज़र आता है कि कल चल करके ये लोग मुल्की पैमाने पर अपना असर छोड़ पाएंगे? या अब तक जो नेपाल में जितने उलमाए कराम हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपने मुल्की पैमाने पर या इलाकाई पैमाने पर अपना असर छोड़ा है? बिल्कुल इसका जवाब नफी में है। हमने दीनी तालीम हासिल कर ली, लेकिन न तो हमसे दावत व तबलीग सही से करने आता है और न हम उस काबिल बन चुके हैं कि हम दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे सकें। और अब तक भी जो दीनी मदारिस नेपाल में कायम हैं, वो दीनी तालीम के नाम पर तालीम तो दिलवा देते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद चल रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो नेपाल जैसी में दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे सके। सबसे बुनियादी कमज़ोरी ये है कि नेपाल में जो ज़बान मुल्की पैमाने पर राइज है, उस ज़बान में एक आलिम को ज़र्रा बराबर भी शुद्ध बुद्ध नहीं है। अब चले हैं मदारिस वाले कि हम बच्चे को पढ़ा करके दावत व तबलीग का काम लेंगे, लेकिन असल जो ज़बान है, जो नेपाल में जो ज़बान चलती है, उस ज़बान की तालीम ही नहीं होती, उस ज़बान की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जाती। तो भला ऐसा मौलवी नेपाल में दावत व तबलीग का काम कैसे अंजाम दे सकते हैं? ज़रा सोचने वाली बात है। मेरी बात ज़रा तीखी लगेगी अहले मदारिस को, लेकिन बहरहाल ये सोचने वाली बात है कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो लोग भी इदारा चलाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि हम ऐसी ज़बान को तरजीह दें जो हमारा इलाकाई ज़बान हो, जो हमारे मुल्क की ज़बान हो, और उस ज़बान में बच्चे को माहिर बनाएं, तभी जा कर के वो हमारे नेपाल में दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। दूसरी बात, आवाज सुन रहे हैं मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। दूसरी बात ये कि एक तरीके से जो सानविया की तालीम कोई दावा करता है, कोई फजीलत का दावा करता है, कोई आलमियत का दावा करता है। देखिए, दावा करना, पढ़ाना, कहीं पे मैंने देखा या मुझे खबर मिली कि सानविया की तालीम दिलाते हैं और सानविया का शहादा नहीं देते हैं। ये कितनी बड़ी, मतलब क्या कहते हैं, जहालत वाली बात है। खलीज में देखिए, एदादिया की तालीम देते हैं और शहादा देते हैं, मुतवस्सिता की तालीम देते हैं और शहादा देते हैं, सानविया की तालीम देते हैं और शहादत देते हैं। हमारे यहाँ ये कितनी बड़ी, क्या कहते हैं, कमी है कि नहीं, एक ही दफा, क्या कहते हैं, फजीलत तक तालीम बच्चे हासिल करेंगे तभी जाकर के एक ही डिग्री मिलेगी। बच्चों का इसमें कितना नुकसान होता है। अगर बच्चे दरमियान में ही में अपनी तालीम तर्क कर देता है तो वो तालिब जाहिल शुमार होता है। सानविया तक की तालीम हासिल कर लिया, अगर किसी वजह से, खानगी मसाइल की वजह से अगर उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो पाती है तो मदारिस वाले क्या करते हैं, शहादत नहीं देते हैं, नतीजतन उसे जाहिलों में शुमार किया जाता है। जबकि कतर में देखिए, सऊदीया में देखिए, या दीगर खलीजी ममालिक में देखिए, सानविया तक तालीम हासिल किया हुआ शख्स को समाज
एक मुअज़्ज़ज़ इंसान समझता है। तो मेरे ख्याल में अहले मदारिस को इस जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये आलमियत और फजीलत, ये दो ऐसे शहादे हैं, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल का ये कोई शहादत नहीं है। मैं कहूँगा उन लोगों को जो मदारिस वाले हैं वो आलमियत और फजीलत ये नाम का कोई शहादा ही तकसीम ना करें, बल्कि वो शहादा तकसीम करें जो जिसका क्या कहते हैं वैल्यू, या जो ये कि आलमी तौर पे राइज हैं। ऐसा नहीं है कि मिस्र में क्या कहते हैं आलमियत और फजीलत तक की तालीम होती है, लेकिन जामिया अजहर ने भी क्या कहते हैं वक्त और ज़ुरूफ को देख करके उन लोगों ने शहादा का नाम चेंज किया। तो ये हिंदुस्तानी, नेपाली और उसी तरीक़े से पाकिस्तानी मदारिस वाले आखिर एक ही चीज़ को जिसका कोई मान्यता नहीं है, जिसको अननून शहादा समझा जाता है, मतलब ये ऐसा शहादा जिसका कोई जिक्र न डिक्शनरी में है और न कहीं अता पता है। तो ये सब दकियानूसी है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों पे अहले मदारिस को तवज्जो देनी चाहिए, या ये कि अलल अकल उनके जहन में कोई बात न हो तो अलल अकल जो खलीजी ममालिक में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं आखिर उनसे रुजू करें कि वो लोग आलमियत और फजीलत के बिलमुकाबिल किस नाम का शहादा देते हैं वो शहादा दें तो बेहतर होगा। तीसरी चीज ये है कि मदारिस के बच्चे को भी मुल्की पैमाना पर जाहिल शुमार किया जाता है। शायद मतलब उनकी भी गिनती क्या कहते हैं आलिमों में नहीं, या ये कि पढ़े लिखे तबका में नहीं होता है, बल्कि क्या कहते हैं जाहिलों में शुमार होता है। हम लोग भी गवर्नमेंट की निगाह में जाहिल हैं। कितनी बड़ी बदनसीबी है। कभी हम लोगों ने, इस मुस्लिम कौम ने इस पे कभी तवज्जो दिया? नहीं तवज्जो दिया कि एक बच्चा 20 साल अपनी जिंदगी सर्फ करता है मदारिस में और फिर भी उसे जाहिल शुमार किया जाता है, या गैर पढ़े लिखे लोगों में उनका शुमार होता है हमारे समाज और हमारी सोसाइटी में। मदारिस वाले को ऐसा क्या कहते हैं निसाब तालीम मुरत्तब करना चाहिए कि उनके मदारिस को भी वो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के लोग उनके बच्चे को क्या कहते हैं पढ़े लिखे तबके में शुमार करें। मदारिस वाले की एक होड़ लगी हुई है, वो लोग क्या कहते हैं ऊंची तालीम दिलाने के क्या कहते हैं जुनून में वो सिर्फ दर्जा बदर्जा बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से उसका मुआवजा लेने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं, जो ये बहुत बड़ी कमी है। मैं समझता हूं आप कतर में रहते हैं, हम कतर में रहते हैं, कुछ लोग सऊदीया में रहते हैं, क्या कोई स्कूल वाला या कोई मदरसे वाला बगैर गवर्नमेंट के स्वीकृति के अपने तालीमी म्यार को बुलंद कर पाते हैं? अगर किसी मदरसे को कोई क्या कहते हैं एक दर्जा भी ऊंचा करना होता है वो गवर्नमेंट से पहले स्वीकृति लेते हैं, ताकि हमारे मदरसे का म्यार बुलंद हो और हमारे मदरसे का नाम जो है मुल्की पैमाने पर रोशन हो। इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देते हैं, बस अपनी मनमानी करते चले जाते हैं। नतीजे ये होता है कि वहां के फारिग को गवर्नमेंट की निगाह में जाहिल शुमार जो है किया जाता है। तो मदारिस वाले के अंदर बहुत सारी कमियां कमजोरियां हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस स्कूल के 2, 3, 4 सब्जेक्ट अपने मदारिस में रख लें और उससे हमारे मदारिस की स्वीकृति मिल जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, तो इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। एक जानिब हम सिर्फ दीनी तालीम दिला करके हमारा बच्चा दावत व तबलीग के काबिल नहीं बन पाता है,
वहीं दूसरी जानिब गवर्नमेंट की निगाह में भी जाहिल होता है, तो आखिर ऐसी तालीम से क्या फायदा? आखिर ऐसी तालीम से क्या फायदा जो न तो वो मुबल्लिग़ इस्लाम बन पाता है, न वो दाई इस्लाम बन पाता है, न वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की निगाह में तालीम याफ्ता शुमार होता है। ऐसी तालीम से क्या फायदा, ऐसे इदारे से क्या फायदा? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ रखते हैं, पहले जैसे जो हुआ उन पे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जबकि जमाना क्या कहते हैं तरक्की की जानिब जो है रवां दवां है, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा। हम लोगों ने तो जैसे तैसे तालीम हासिल कर ली, लेकिन बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि एक हमारा मकाम हो, मुस्लिम कौम का अपने देश में क्या कहते हैं की अजमत हो, तो बहरहाल ये सारी तदाबीर क्या कहते हैं अहले मदारिस को अपनाने होंगे, तब जा करके कौम मुस्लिम अब क्या कहते हैं अपने मसाइल मुश्किलात को कौम के सामने और क्या कहते हैं देशवासी के सामने रख पाएंगे। आज किसी मौलवी में इतनी सकत नहीं है कि वो अपने मसाइल और अपनी मुश्किलात को क्या कहते हैं गवर्नमेंट के सामने रख पाएं। वजह यह है कि वो बिल्कुल बेज़बान हैं, पढ़ लिख करके भी बेज़ुबान हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे भाइयों, मेरी बातें तो बहुत तीखी हैं, तल्ख हैं, लेकिन बहरहाल बातें ऐसी हैं जो काबिल अमल हैं। गौर और खौज करने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप जो भी दर्जा बढ़ाएं, बहरहाल कोशिश करें कि गवर्नमेंट से स्वीकृति लें और उसके बाद क्या कहते हैं कदम आगे बढ़ाएं। जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम को भी क्या कहते हैं फॉलो करें और कोशिश करें कि हम बच्चे को वो चीज़ दें जो उनकी ज़िंदगी के लिए अमली मैदान में मुफीद साबित हो। हम ऐसी चीज़ उनके हाथ में न थमा दें जो अमली ज़िंदगी में उनके लिए क्या कहते हैं बेसूद हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के अंदर फ़हमे सलीम अता फरमाए और कौम मुस्लिम की अज़मत बहाल करने के लिए नई फ़िक्र जो है और नई सोच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा दर्द है जो आपके सीने के अंदर बंद था, है ना। तीखी बातें नहीं है बल्कि हकीकी बात ही है कि इस तरह से होना भी चाहिए। हम लोग पढ़ लिख के भी सही मानों में बेज़ुबान है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे बच्चे ऐसे बने कि वो जैसे नेपाल के अंदर हमें वो मकाम दिला सके या हमारे लिए वो काम कर सके, कौम मुस्लिम के लिए वो काम कर सके जो एक मौलवी नहीं कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल समझिए एक तरह से बेज़बान ही होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेपाली भाषा के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर और अरबी के ऊपर भी यहाँ पे हम लोगों ने जोर दिया है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कोशिश करें कि अगर नेपाली को पढ़ा रहा है तो नेपाली भाषा ही के अंदर वो पढ़ाए। ऐसा न हो कि आप मैथिली में या उर्दू में पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं नेपाली में पढ़ा रहे हैं। नेपाली में ऐसा नहीं होना चाहिए। अरबी आप पढ़ाते हैं तो अरबी ही में पढ़ाएं, तो जाकर के बोलने का भी तरीका जल्दी आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारे मास्टर्स हैं इंग्लिश में अगर पढ़ाते हैं तो उनको बोले कि कोशिश करें कि वो इंग्लिश ही के अंदर समझाने की कोशिश करें। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे, अरबी टू अरबी, नेपाली टू नेपाली अगर पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चे काबिल निकलेंगे और वो बेहतरीन सलाहियत के हामिल होंगे। तो इस ताल्लुक से अगर आप शेख अब्दुल रहीम साहब कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर जवाब दें। जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है अल्लाह ताला जज़ा खैर दे शेख शरीफ साहब को, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बतलाई हैं और मैं 2-4 पॉइंट नोट किया हूँ, उस पे जो है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ज़ुबान के ताल्लुक से जो बतलाया है कि मदारिस के बच्चे जो निकलते हैं
वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं या नहीं रख पाएंगे, या कोई भी ऐसा आलिम नहीं है जो अपनी बात को हुकूमत के पास रख सकते हों, जो मदारिस के पढ़े लिखे हैं। तो उसके कई असबाब हैं और इस बात से मैं यानी पूरे तौर पे मुत्तफिक नहीं हूँ। असबाब ये हैं कि अक्सर लोग जो फारिग हुए हैं वो इंडिया के मदारिस से, तो उनको नेपाली जुबान आएगी कैसे? अक्सर उलमाए कराम को आप देख लें तो फारिग हैं इंडिया के मदारिस से, तो नेपाली जुबान कैसे आएगी? रह गई बात कि जो लोग नेपाल से फारिग हैं तो उनमें से मैं बतलाता हूँ जो जामिया सलफिया के फारिगीन हैं, जामिया सलफिया जनकपुर धाम के फारिगीन हैं, या जिन लोगों ने वहाँ पढ़ा है तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह नेपाली अच्छी तरह मालूम है। उन्हीं लोगों के बैच में मैं हूँ, शेख सलीम साजिद हैं, कलीम मखनाहा के हैं, और भी बहुत सारे इखवान हैं जिनको नेपाली जुबान मालूम, बहुत सारे लोग हैं तो मालूम है। रह गई जो है गर्ब नेपाल की बात, तो वहाँ भी मैं पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ पहली जमात से यानी ऊपर की जमात में, अरबी जमात में नेपाली की तालीम नहीं होती है, सिर्फ इब्तदाइया में तालीम होती है। तो ये भी एक कमी है कि वहाँ के आलिम उलमा जो होते हैं नेपाली सही से नहीं जान पाते हैं। पूर्वी इलाके में उसके बाद सल्फिया में चंद साल जो है पढ़ाई हुई या फरागत तक जो है लोग निकले, फिर उसके बाद तो सिलसिला ही मुनक़ता हो गया, तो कहाँ से निकलेंगे जो है नेपाली जुबान जानने वाले या अपने मुल्क की जुबान जानने वाले। तो अब ये है कि जो मदारिस शुरू कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि पूर्वी इलाके में जो छोटे हों या बड़े मदारिस जो भी है, तो वहाँ पे नेपाली तालीम का बंदोबस्त है, इंतज़ाम है। और मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद ही मरकज़ में शुरू से लेके आखिर तक रखा है नेपाली जुबान को, सिवाय 8वीं जमात के, 8वीं जमात को छोड़ करके अभी जो निसाब बना रहे हैं तो उसमें रखे हैं। और मैंने जो है उसमें बोर्डिंग स्कूल का जो है वो रखा है निसाब, और इसको शिक्षा ऑफिस से, वजारत तालीम से मंजूरी भी दिलाया है। और मैंने इससे पहले कहा था कि 2 क्लास तक हमारी मंजूरी 2 साल पहले हो गई, और इस बीच में जो है कोरोना की वजह से 2 साल के और जो है दे चुके हैं 4 क्लास तक। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब जो है उसकी मंजूरी आ जाएगी, और हम चाहते हैं कि यहाँ से जो बच्चे निकलें वो आप स्कूल में डाल दें, या उसके को जो है वैल्यू हो उसकी शहादत या उसकी जो है तालीम का। और इसी तरह से क्या है कि उनके निसाब को भी हम मद्देनजर रखते हैं। निसाब को रखते हुए जो बनाए हैं हर क्लास में, चाहे हिसाब हो या नेपाली हो या इंग्लिश हो। लेकिन एक और दुश्वारी है, जिस तरह से चाहते हैं शेख शरीफ साहब ने कहा, तो उसके लिए एक और मेहनत करने की हमें जरूरत है। आप इससे भी चाहते हैं कि अच्छी तालीम हो नेपाली की, तो उसके लिए कुछ हमें तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी क्या है? जैसे हम जो है शुरू क्लास में चम्मन इस्लाम पढ़ाते हैं या सच्चा दीन पढ़ाते हैं, या इसी तरह से और बहुत सारी किताबें इब्तिदाई जो है दीनी किताब पढ़ाते हैं, उसको आप तहवील कीजिए, आप उसका तर्जुमा कीजिए, या उसी तरह का निसाब जो है तैयार कीजिए जो इब्तिदाई क्लास में शुरू हो। बल्कि जो है जो बोर्डिंग स्कूल है, हम 1-2 किताब को बोर्डिंग स्कूल जो मुसलमानों के स्कूल है उसमें भी इसको डाल सकते हैं अगर निसाब तैयार हो जाए तो, ताकि बच्चों को नेपाली के दीन के साथ साथ नेपाली और नेपाली के साथ साथ दीन भी पता चले। तो इस तरह से अगर हमने उसको कर लिया तो ये बहुत बड़ा काम होगा। निसाब का तैयार शायद इसमें कुछ काम किया है मेरे ख्याल से, वो बताएंगे बाद में। कौन? शेख शरीफ साहब ने कुछ काम किया है इस ताल्लुक से, तो नाफिज करेंगे, वही कर रहा हूँ ना। उस किताब को इसी तरह से शेख मुश्ताक भी जो है कुछ काम कर रहे हैं, मुस्तवा यानी लेवल 1 लेवल 2 इस तरह से जो है कुछ बनाए हैं। तो इस तरह से ढूंढ करके हम लाएं, यानी इस तरह से तैयारी करें, और उस चीज को मकतब से लेके और क्या कहते जामिया तक इस चीज को शुरू करें, तो इंशाअल्लाह जुबान भी अच्छी हो जाएगी, नेपाली जुबान भी सीख जाएंगे, अपनी बात को हम हर जगह रख सकते हैं। और यही कमी कमजोरी है कि हम अपनी जुबान को नहीं रख पाते, जो है में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ये जुबान का जो ताल्लुक बतला रहे हैं हम, इंशाअल्लाह इसके अंदर
मैंने बताया कि हमारे यहाँ तालीम के अंदर है, और बिलखुसूस इंग्लिश और नेपाली पढ़ाने वाले हमारे यहाँ इंटर पास 2 मास्टर हैं, इंटर के 2 मास्टर हैं, बहुत जमाने से हैं, 2 मास्टर को हमने रखा है, वो कई साल से हैं। और इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि और भी जो है इस तरह से आए, बल्कि शेख एजाज साहब थे तो वो भी अच्छे इंग्लिश जानने वाले थे, शेख कलीम मदनी हैं तो उनको भी इंग्लिश के लिए कि उन्होंने एमए इंग्लिश में, इंडिया में जब थे उन्होंने एमए किया है, वो डिग्री हासिल की है, तो उनकी भी बहुत अच्छी जो है इंग्लिश है। तो हम लोग इस मैदान में जो है रखे हैं, और इस तरह से जो है रह गई बात के शहादह के बारे में आपने कहा कि जो है जैसे हाँ जी बताइए। जी कहें आप अपनी बात मुकम्मल करें। शहादह की बात जो है, तो शहादह जो है सानविया में मिलनी चाहिए, सानविया की जो है शहादह सानविया में, इसी तरह से जो भी जो है मरहला तय करते हैं तो उसकी जो है शहादह हर मदारिस वाले को देना चाहिए, ताकि बच्चों देना को चाहिए, दूसरे उसमें जगह मतलब कोई ये नहीं होना चाहिए, उस बच्चे का हक है। हाँ, नहीं कोई बिला जो हक है, ताकि उसका हक ना मारा जाए, कहीं दाखिला लेने में परेशानी ना हो, कोई काम करना चाहे कहीं भी तो एक आदमी के पास एक चीज हो, बेस हो कि ये बंदा यहाँ तक जो है तालीम हासिल किए हुआ है, और उस बेस की बुनियाद पे उसको कहीं जो है कुछ कर सके, तो ये जो है होना चाहिए। रह गई बात के जो आलमी और फजीलह की जो है शहादत, तो मैं भी जो है पहले तो गौर नहीं किया, लेकिन तकरीबन 8-10 साल से जो है गौर कर रहा हूँ कि लोग आलमी और फजीला की शहादत क्यों लिखते हैं, और इस सिलसिले में मैं जो है कई बार सोचा कि इसको जो है बदला जाए, लेकिन अब बाहरी दुनिया में लोगों ने तारुफ करा दिया है कि आलमी और फजीला की डिग्री का क्या मतलब है। असल जो जिन लोगों ने आलमी और फजीला की जो है शहादत को बहाल किया है, तो ये बाहर के लिए नहीं, ये खास तौर से अपने मुल्क के मियार को देखते हुए ये सानविया है और ये आलमिया है और ये फजीला है। बाहर उसकी जो है यानी इस तरह की जो है कोई चीज नहीं है कि वो लोग जानते भी नहीं आलमिया किसको कहते हैं और फजीला किस चीज को कहते हैं। बाहर के जो है जो गल्फ कंट्री वगैरह है, खासतौर से खलीजी ममालिक, तो इस तरह से जो है चीज़ों को ये लोग नहीं जानते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग तो ये नहीं होता है कि पूरे तौर पे जो है सारे लोग यहाँ आ जाएंगे, मतलब जो है गल्फ में या इसी तरह से जामियात में जाके पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ तो इसी डिग्री को मेयार बनाया जाता है। बहरहाल इसको भी अगर जो है चाहें तो इसको बदलना पड़ेगा बड़े सगीर के अंदर, मतलब जो है पाकिस्तान है और इसी तरह इंडिया है और नेपाल है और बांग्लादेश है वगैरह वगैरह, इसलिए कि तकरीबन हर जगह ये आलमियत और फजीलत वगैरह लिखते हैं। और इस सिलसिले में मैं खुद जामिया इस्लामिया गया था, अभी 2 हफ्ता पहले गया था, और मैं कासिम से बतलाया भी कि इस जुमा को मैं नहीं था इसलिए कि मैं जो है उम्रे पे हूँ, तो मेरा मकसद जामिया इस्लामिया का दौरा भी था और वहाँ इल्तिहाक के लिए क्या शुरूत हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत है, और मैं वहाँ गया था और मसूल वगैरह से मिला हूँ, और माशाल्लाह उन लोगों से मिल करके बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया हूँ। उसमें से एक फॉर्म ये भी है, आप देख सकते हैं इल्तिहाक जामिया का जो है ये तलब मुआदला मुअस्ससा तालीमिया, तो ये मैं लाया हूँ, इस पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने नेपाल गवर्नमेंट से इसकी मंजूरी जो है यानी मरकज की मंजूरी दिलाई है, इसी तरह से मदीना हो या इसी तरह से जो है और उम्मुल कुरा जो है मक्का हो या दूसरे जगह हो, तो वहाँ पे भी इसका इल्तिहाक हो जाए ताकि बच्चे आ सकें और पढ़ सकें। तो ये भी इस सिलसिले में भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं। रह गई एक आखिरी बात कि मदारिस कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। तो हम लोग लगे हुए हैं इसका, यानी मतलब हर चीज जो है मैं कहा था पहले भी कि हर चीज जो है हम तो फेसबुक पे इस पे नहीं डालते हैं, लेकिन काम हो रहा है और आप लोगों के ताउन की जरूरत है, हम जो है लगे हुए हैं। इसी तरह से एक बात आपने जो है बतलाया कि मदारिस के बच्चों को जाहिल जो है हुकूमत के नजदीक जो है जाहिल समझा जाता है, तो ये सिर्फ हमारे ही मुल्क का मसला नहीं है, दूसरे मुल्क का भी मसला है। सबसे पहले हमारे यहाँ तो मुसलमान यानी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ही ऐसी थी जो रस्मी तौर पे हिंदू जो है कहते हैं, कोई मुसलमानों का हुकूक नहीं था। लेकिन जब से हुकूक वगैरह का ऐलान हुआ है तब से लोग कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं और बोर्ड गठन करने में लगे हुए हैं। जब बोर्ड गठन कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मदारिस का भी जो है एक
ख़ास जो है गवर्नमेंट के साथ मिलता जुलता निसाब होगा और हमारी शहादा को भी वो लोग तस्लीम करेंगे और उससे भी जो है कुछ हम लोग कर सकते हैं। जिस तरह इंडिया के अंदर बोर्ड है, बोर्ड का जो है जैसे पटना बोर्ड है या इसी तरह बिहार बोर्ड है और वहां से जो फारिग होते हैं सरकारी जो है नौकरी पाते हैं, इसी तरह से इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग इस सिलसिले में जो है नेपाल के जो सियासी लोग हैं और कुछ उलमा वगैरह मिल करके जो है काम कर रहे हैं। तो ये जो है वो लोग करेंगे और हम लोग जो है उनको जो है क्या है आगे जो है बढ़ाएंगे और उनको मशवरा देंगे। तो इंशाअल्लाह ये भी जल्दी काम होगा और इस तरह तवज्जो देने की जरूरत है और हम लोग मसूलिन जो है इंशाअल्लाह इस बात को भी रखेंगे। तो ये चंद चीजें थी जिसको मैंने आपके सामने आप लोगों के सामने रखा है और बिलखुसूस शरीफ साहब का जो है शुक्रिया कि आपने जो है इन सवाल को रखा जिसकी मैं वजाहत कर सका हूँ। बाकी जो है खामी और कोताही तो इंसान से होती है। जी जी माशाल्लाह। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया शेख आपका। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप क्या कहते हैं इन सब कमियों को दूर करने के लिए क्या कहते हैं कोशिश में लगे हुए हैं और एक जिम्मेदार को चाहिए भी क्या कह के हमारे यहाँ का बच्चा क्या कहते हैं एक कामयाब बच्चा निकले और यही एक जिम्मेदार की कोशिश भी होनी चाहिए। और जो भी रुकावटें क्या कहते हैं उन रुकावटों पर गौर करने की कोशिश करनी चाहिए और बच्चों के लिए राह हमवार करनी चाहिए। चूँकि मदारिस के ज़िम्मेदार एक तरीक़े से मदरसा में ज़ेर तालीम बच्चे का बाप की हैसियत रखता है, तो उनको उसी हिसाब से क्या कहते हैं सोचना चाहिए और राह हमवार करनी चाहिए। तो आपकी बातों को सुनकर के बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने जो सारी बातें बताई है यकीनन क्या कहते हैं वो एक तरीक़े से लम्हे फ़िक्रिया है और मदारिस वाले को मतलब क्या कहते हैं सोचने पे मजबूर करता है। जी जी क्या कहते हैं वो तो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि बहुत सारे अक्सर मदारिस के जो फारिगीन हैं वो इंडिया से पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर हमारे नेपाल के मदारिस से बच्चा पढ़ करके मुल्की पैमाने पे अपना कोई असर व रसूख छोड़ करके दुनिया से नहीं जाता है तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। तो इस वजह से हालात भी अब बदल चुके हैं। तो नेपाल में जो मदारिस हैं उन मदारिस को बहरहाल अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अब तक मौलवी मौलाना जो है मुल्की पैमाने पे अपना रोल अदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर वजह क्या है और वो कौन से असबाब हैं, उन असबाब का तदारुक किया जाए। तो बहरहाल मुस्लिम उम्मह के लिए जो है ना हमारे मुल्क में एक बेहतर क्या कहते हैं ये रहेगा माहौल रहेगा और इन सब चीज़ों पे हम उलमा को भी सोचना होगा और हम पढ़े लिखे लोग अगर नहीं सोचेंगे तो फिर कौन लोग सोचेंगे। शेख मेरी एक गुजारिश होगी सबों से, जैसे खास करके शेख अब्दुल रहीम साहब से, जैसे क्या हम लोग जैसे 8 साल 10 साल 12 साल का जो हमारा निसाब होता है फजीलत करने के लिए, क्या हम उसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं? हमारे यहाँ जैसे यानी 12 किताब होती है एक दिन में, यानी बच्चे 12 किताब 14 किताब रखते हैं, तो क्या हम सिर्फ फन के हिसाब से यानी कुरान है, हदीस है, उसके बाद में क्या कहते हैं इंग्लिश है, नेपाली है, हिसाब है और ये 4-5 जुबान को लेकर ये साइंस है, ये जोग्राफिया है, इतना शॉर्ट 6 या 7 घंटे 6 या 5 में नहीं कर सकते हैं और 5 या 6 साल में फरागत नहीं करा सकते हैं क्या बच्चे को, ताकि हमारा बच्चा यहाँ से फारिग होने के बाद में इस लायक भी रहे कि किसी ये क्या कहते हैं कॉलेज में जाकर के या ये इंटर के बाद किसी और स्कूल में जाकर के अच्छी तालीम कर सके, डॉक्टर इंजीनियर की तरफ जा सके, ताकि ये तालीम भी मजबूत हो और उसके पास टाइम भी बचे। जी 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 अभी हमारे पास जी इसको बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या है कि जो अरबी तालीम हमारे यहाँ पहली जमात से 8वीं जमात तक है तो उसमें देखा गया है कि अक्सर कवायद वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं और कवायद वगैरह ज्यादा रटाते हैं।
ये कवायद कुरान को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए कवायद वगैरह नहू और सर्फ वगैरह है, ये पढ़ाए जाते हैं, लेकिन तत्बीकी तौर पे उनको खास तौर से उस पे जोर नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है कि अरबी फहम समझने की ताकत यानी कम होती है और ज्यादातर ग्रामर में उलझ के रह जाते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने अभी जो है कुछ निसाब जो है दाखिल किया है इसमें, जिसपे लोगा अल अरबिया कह करके जो जामी इस्लामी में पहले पढ़ाते थे, दक्तुर फा की किताब है, उससे जो है लिया हूं ताकि आदमी तत्बीकी यानी अमली तौर पे अरबी बोल सकें और इतने लंबे वक्फे 8वीं जमात तक बोलने की जो है जरूरत न पड़े। अब जैसे जो है सानविये की 4 साल मुद्दत है, इसकी जरूरत नहीं, सानविये की 4 साल की मुद्दत जरूरत नहीं है, इसको घटा के 3 साल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं, अभी किए नहीं है, लेकिन इसको करके हम चाहते हैं कि घटाया जाए, इसको कम किया जाए और जो निसाब हमारे पास रहे फरागत तक बंदा इंटर, ये क्या कहते हैं, एसएलसी का जो निसाब है वो पास कर लें, ताकि आदमी जो है उसकी तैयारी करें और तैयारी करने के बाद फरागत के बाद चाहे 1 साल लगा के हो, जैसे भी हो, गवर्नमेंट से भी एग्जाम दे करके और उस शहादा को एसएलसी जिसको कहते हैं तो उसको हासिल कर ले और वहां से जो है सर्टिफिकेट हासिल करके कुछ जो है करें। तो इस तरह से उसको घटाया जा सकता है, लेकिन वही कहा कि इसको बतदरीज जो है घटाया जा सकता है, एक बारगी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत सारी जगहों पे तो और भी लंबा कर दिया है, यानी फजीलत 8वीं कर दिया है और तखस्सुस फिर जो है 2 साल कर दिया है। अगर उसी को आप जो है घटा करके 7वीं कर दें और 7वीं के बाद 1 साल तखस्सुस कर दें और जिसके अंदर आप सिर्फ जो है दावतो तबलीग है या इसी तरह अमली मैदान में आप किस तरह से काम करेंगे, इसी तरह से जो है दरसो तदरीस किस तरह से अंजाम देंगे, यानी 4-4 महीने का कोर्स रख दे या 3-3 महीने का कोर्स कर दे, 1 साल तखस्सुस का रख दे, तो 8 साल तो हो जाएगा। जो इस कोर्स को करना चाहें इस कोर्स को करें, जो है स्कूल की तैयारी करके जो है वो एसएलसी जो है पास करना चाहते हैं उसको करें। तो इस तरह से आहिस्ता से इसको कम किया जा सकता है और इसको इस तरह से पूरा कर सकते हैं। माशाल्लाह, अगर इस तरह से कम कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का वक्त भी बचेगा। शेख सनाउल्लाह का बहुत बेहतरीन सोच है और सारे लोगों का यही होगा और बहुत अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ आपने जिस तरह से कहा कि तीसरी जमात 3 साल तक जो है उसको कर दिया जाए और फजीलत की तालीम बहुत सारी जगहों पे 7वीं जमात में फरागत तक की हो जाती है, तो 7वीं में फरागत कर दिया जाए और 8वीं साल है, अगर चाहे कोई बंदा तो तखस्सुस करे, नहीं चाहे तो अपना जाए। लेकिन इतने सालों तक के बीच में वो हमारा बच्चा जो है अगर एसएलसी कर लेता है और हम उसको करा देते हैं और मदरसे वाले उसको थोड़ा उसके ऊपर मेहनत कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन काम होगा और एक समझिए एक नमूना होगा जो हम लोग कर गुजरेंगे ऐसा। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है और जो भी अहले मदारिस है उन सबको और जो भी मुंतजिमीन है सबके ऊपर फिक्र करने की उन्हें जरूरत है। हमारे साथ अभी एक चीज और साहब जुड़े हुए हैं। एक चीज और मैं कह देना चाहता हूँ उसके बाद जो है, ठीक है? जी जी बिल्कुल। एक चीज मैं ये कह देना चाहता हूँ, गांव के अंदर थोड़ा सा हाथ को फैलाएं, हाथ को कुशादा करें। गांव घर के अंदर जो बच्चे आते हैं वो मकतब पढ़ के आते हैं, लेकिन मकतब की तालीम सही नहीं होती है, यानी एक बच्चे पे 60-60 50-50 बच्चे देंगे तो आते रहो जाते रहो। जी ये तो बिल्कुल कमी है हमारे यहाँ, बल्कि मैंने कई मरतबा कोशिश भी की अपने गांव में भी जो है एक मौलवी साहब है तो दूसरे मौलवी साहब ला दें और रखें, लेकिन जो है मुझे लगा कि लोग या तो कुछ लोग चाहते नहीं और कुछ लोग जो है बहुत ही कमजोर किस्म के हैं जो तनख्वाह देने में बहुत ही हमारे यहाँ मुश्किल पैदा हो जाता है। यही वजह है। वही चीज कह रहा हूँ कि हम अपने बच्चे को तालीम देना चाहते हैं तो सिर्फ ज़कात पे इन्हिसार क्यों रखे हुए हैं कि उसी पे जो है जो उस्ताद रख सकते हैं बाकी नहीं रख सकते हैं। उस मियार को जरा बढ़ा करके और एक मास्टर को रखें, 2 मौलवी को रखें, 3 कर लेते हैं, जहाँ पे इम्कान है ज्यादा है 3 कर लेते हैं और मकतब की तालीम अगर अच्छी हो जाती है तो वो बच्चे मजबूत रहेंगे और आगे जो है क्लास कम करने में मददगार साबित होंगे। तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन नीचे की तालीम अगर जो है अच्छी नहीं होती है तो मजबूरन जो है इंसान जो है सानविये की तालीम को बढ़ा देता है ताकि उसके अंदर मजबूत हो। उस चीज को कम करना चाहते हैं तो गांव के निजाम को थोड़ा सा हम लोग मेहनत करके गांव घर के अंदर देखें, जहां पे जो है इस्तिताअत नहीं है वहां तक मुकम्मल जो है
नीचे की तालीम न दें, अदना तक की तालीम न दें, बल्कि जो है कुरान वगैरह पढ़ा करके और दूसरे जगह जो है ट्रांसफर करें। जहाँ पे पहली जमात से नीचे तक की तालीम दे सकते हैं तो वहां पे कम से कम 3 उस्ताद हों या 4 हों। इस तरह से जो है माहौल अगर पैदा करते हैं तो बच्चे अच्छे निकलेंगे और कम हम लोग ऐसा माहौल पैदा करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जो टीम है इंशाल्लाह वो हर जगह जाएगी। हम जो उलमा किराम हर जगह भेज रहे हैं, इंशाल्लाह मोटिवेट करेंगे सारे लोगों को, और इस ताल्लुक से जो हम लोग बात करेंगे, गांव-गांव जा करके बात करेंगे, हर मकतब और हर मदरसे के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ ये सारी चीज़ों को, वैसे ही इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये ज़ूम मीटिंग जो हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारी बातें आती हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर काम हो। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि हम सब मिल करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नूरैन अकरम साहब, ये बहुत ही मुतहर्रिक और फ़ाल किस्म के हमारे भाई हैं जो हमारे यहाँ के कतर के अंदर मुस्लिम समाज सोसाइटी के अंदर ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं और ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, तो बहुत अच्छा बेहतरीन सारा काम करते धरते हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी 1-2 मिनट जो है मुसलमानों का क्या किरदार होना चाहिए नेपाल के अंदर, आप भी उसके अंदर बताएं, या तालीम के अंदर जो है पढ़ाई के अंदर लिखाई के अंदर वहाँ के हमारे स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए, चाहे मदरसे के हों या स्कूल के हों। 2 मिनट आपको मिलता है, आप अपनी बात को 2 मिनट के अंदर ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व सबसे पहले तो रहमतुल्लाह। शुक्रिया आपका ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि मैं इस सर्च में था कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले मुझे जहां मैं एक जो हम दीनी तालीम लेते हैं और दुनियावी तालीम के अंदर जो गैप है दोनों के बीच, कहीं पे मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि दोनों को कैसे हम मिला सकते हैं। जी पहले जी बात, हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया यहाँ पे, वहाँ पे 2 तरह की बात है, एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। आपने जो लीगलाइजेशन प्रोसेस का बात किया कि हमें एजुकेशन, मदरसा के एजुकेशन को लीगलाइज करके 10th और 12th के इक्विवेलेंट में करना चाहिए, ये प्रोसेस काफी लोग लगे हुए हैं और ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा। तो क्या तब तक हम वेट करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से हमें ओपन एजुकेशन के सिस्टम की तरफ सोचना चाहिए। स्कूलिंग ओपन सिस्टम है, बहुत सारा इंडिया में है, नेपाल में भी अवेलेबल है। आप अगर हम मदरसों में अगर ओपन सिस्टम का 10th का या 12th का के लिए तैयारी करके, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके ओपन सिस्टम के एजुकेशन को तैयार करने के लिए, उसको करिकुलम में आप पैरेलली डालें। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं मदरसा में, उनको ओपन स्कूलिंग का ट्रेनिंग करके उनको एग्जाम में अपेयर करवाएं, तो वो 10th इक्विवेलेंट आ जाएगा। जब तक कि हमें गवर्नमेंट से हमारे मदरसों का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, तब तक हम ये काम कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अगर सर्च करेंगे, ओपन यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी था पहले, अब इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर फिलिप साहब ने स्टार्ट किया था उन्होंने कतर से 2007 में, ठीक है ना। तो ये आप कह लें कि बिलाल फिलिप साहब, तो वो जमाइका के थे, अभी कैनेडियन सिटीजन है। उन्होंने जो इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खोला है, वहाँ पे फ्री एजुकेशन डिप्लोमा कोर्सेज है डिफरेंट कुरान पे और बड़े सारे चीज़, उसको आप करिकुलम में शामिल कर सकते हैं अपने मदरसों में। और अगर उस तरह का एक सेंटर भी खोल ले, अगर उसका एक एग्जाम सेंटर भी खोल लें आप अगर नेपाल में, तो वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि हमारी लड़कियां क्या होती हैं, 10th तक या 8th तक पढ़ के घर में बैठ जाती हैं। हमने डिस्कशन किया कि लड़कों को हमें पढ़ाना, लड़कियों के एजुकेशन के लिए हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया। जो कि माएँ हैं जो अपने बच्चों को एनकरेज करती हैं पढ़ने जाने के लिए, मदरसा भेजती माँ है या स्कूल, अगर हम उनको एजुकेट कर सके किसी भी तरीके से तो बहुत अच्छी बात होगी। उसमें बहुत सारा है कि उनके लिए हम, जरूरत नहीं है कि उनको स्कूल में भेजें, हम ओपन सिस्टम माहौल क्रिएट करें अपने मदरसा। हमारे गांव में हमारा तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे गांव में हर जगह मदरसा है, और एक नहीं, 2-2 3-3 होते हैं मदरसे, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग यूज नहीं करते हैं जो हमें यूज करना चाहिए। उसको हम लोग सिर्फ एक बिजनेस हब बना लिए हैं। एजुकेशन इदारा अभी तक नहीं बना है हमारा कोई भी मदरसा। मैं कोई भी गांव में देखता हूँ 2 मदरसे होते हैं, दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं मदरसे वाले कि हमारे यहाँ। हमारे गांव में बाहर के बच्चे आके पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे गांव की लड़कियां जाहिल होती हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे केसेस हैं। तो उसकी तरफ हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने गाँव में जो मदरसा है, उससे पहले अपने गाँव के बच्चों को, लड़कियों को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, क्या एजुकेशन लाए, जो अभी अवेलेबल है उस पर पहले दे, और पैरेलली एक टीम बना करके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन की तरफ जाए, तभी हो सकता है। दूसरा है कि स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग। आप मदरसे में कंप्यूटर एजुकेशन है, हमारे बड़े सारे भाई लोग हैं जो दोहा कतार से रिटर्न होकर के वहाँ पे जाते हैं, उन लोग को एज ए ट्रेनर रखे, PRO का दे,
इंग्लिश अरेबिक ट्रांसलेटर का ट्रेनिंग दिलवाया उनसे अपने बच्चों को, ताकि एक स्किल्ड ओरिएंटेड बच्चा वहां से निकले, मदरसा से पढ़ने के बाद भी वो बाहर जॉब कर सके अच्छी तरह से। बड़े सारे हमारे टेक्नीशियंस हैं, कंप्यूटर रिलेटेड है या फिर प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है। ऐसे चीजों को रख करके, कोई जरूरी नहीं कि आप कोर्स में डालें, कोई जरूरी नहीं है, 3-3 महीने का ट्रेनिंग रखें उनके लिए बीच बीच में, कभी कभी साल में एक बार लोगों को उसमें इन्वॉल्व करें, ट्रेन करें, वो स्किल होकर के निकलेगा। तो ये सारा चीज है जो हमें हेल्प कर सकता है। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं इसी के साथ नहीं 2 मिनट और आपको मिलते हैं, चलिए बताइए बताइए, क्योंकि जब हम लोग आपस में डिस्कस ही करेंगे तो ही जाकर के बात फाइनल होगी और हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो आपको 2 मिनट आउट दिए जाते हैं, बोले, और आइंदा आप जरूर हमारे साथ शामिल हो, बल्कि ऐसे जो लोग भी हैं हम उनका इस्तकबाल करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और आप हमारे साथ मिले, हम सब मिलजुल करके। इसीलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक भाई ने कहा था कि जितने भी हमारे उलमाए कराम हमारे गाँव में है उनका लिस्ट बनाया जाए। तो मैंने ये कहा था कि जो बच्चे मैट्रिक से लेकर के MBA, डॉक्टर, जो भी इंजीनियर हो, उनका भी लिस्ट बनाया जाए, और हम लोग इस काम के ऊपर सोच रहे हैं भी करने का, इंशाल्लाह। समझ रहे हैं, हम लोग मिल ये करके बहुत ही अच्छी सारा बात काम है। करेंगे तो काम होगा इंशाल्लाह। हाँ आप बताएं, 2 मिनट और भी मेरा आपके। मेरा यही सोच है कि जब भी हम कोई भी प्लान करते हैं, जो कभी कभी भी हम लोग फ्यूचर में जाते हैं कि हम ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, हमारा गवर्नमेंट से हमारा रिकॉग्नाइजेशन हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। अब आप इस लिख के लीजिए, अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट 10 इयर्स या 12 या 15 जाएगा वो रिकॉग्नाइजेशन मिलने में आपको, क्योंकि जी हम लोग बिल्कुल। जहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या करना है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको हम यूज करें। ओपन स्कूलिंग सिस्टम हर जगह अवेलेबल है। उस्तानिया फोकानिया हम लोगों ने अपने घर में लाना है यहाँ पे लड़कियों के लिए। लड़कियों को होता क्या है ना कि आप अगर घर में या गाँव में लड़कियों को कहें कि मदरसा जाके पढ़ना है, पढ़ेंगी ठीक है, लेकिन एक सर्टेन एज तक, उसके बाद उनका एजुकेशन से खत्म हो जाता है नाता। उसको इन्वॉल्व कैसे करना है, आप उनके माइंड में रखें कि आपको उस्तानिया का या फोकानिया का एग्जाम देना है, आपको उसके लिए प्रिपेयर करें। आप पहले आप एग्जाम देंगे, हम एक मॉक टेस्ट अगर अपने मदरसों में रख सकते हैं, गाँव के लड़कियों के लिए मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले का प्रिपरेशन, वो वहां पे आकर के एग्जाम देंगी, जस्ट टेस्ट होगा नॉर्मल। फिर उसको जब प्रिपेयर हो जाए उसको फिर चाहे आप अगर नेपाल में सेंटर नहीं है तो इंडिया भेज करके सभी को एक बैच में एग्जाम दिलवा सकते हैं। उनका एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसमें एजुकेशन से। वो आज का घर के काम के साथ एजुकेशन एक रिदम में लाना बहुत जरूरी है। हम लोग ने छोड़ दिया है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है उस पर, एक रेगुलेटरी नहीं है किसी चीज के लिए, उस पर ज्यादा जरूरी है। और लड़कों के अंदर भी गाँव में हर एक लड़कों को देखे जो भी मदरसा में पढ़ने आ रहा है, और जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके लिए भी आप लोग मदरसे से टच करने का कोशिश करें उनको। उनके लिए आप टाइम टू टाइम कुछ प्रोग्राम्स रखें कि बच्चे वहाँ पे भी, स्कूल के बच्चे भी आए वहाँ पे, कुछ सीख के जाए वहाँ पे। कोई जरूरी नहीं कि आपको उसके लिए लंबा कोर्स रखना है, नहीं, हफ्ते में 1 दिन आए, या सपोज करो उनके छुट्टियों के टाइम में आप मदरसे में कुछ ऐसा प्रोग्राम अरेंज करें कि बच्चे वहाँ पे आए, नमाज सीखे, कलमा सीखे, इस्लाम के बारे में जाने। इस तरह का एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखना जरूरी है। तो वो सब चीज बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं रखता हूँ 2 बातें, फिनिश। थैंक यू। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जितने भी हमारे अहबाब हैं सब लोग अपने अपने वीडियो और ऑडियो खोल लें, हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और हर एक भाई जो है जो भी बोलना चाहे 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग जो है बोलें, ताकि इस मजलिस का इंशाल्लाह जल्दी इख्तिताम कर दिया जाए। और माशाल्लाह आज बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई तालीम के ताल्लुक से भी, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि फजलत की तालीम हो रही है। उस ताल्लुक से जो लोग भी, जो भाई भी आप बात रखना चाहें, बिल्कुल 1 मिनट आपका टाइम रहेगा। और आप लोग अपना अपना खोल लें। शेख फिरोज सल्फी साहब, अब अपना ऑडियो खोल लें। और नहीं आ रही है आवाज आपकी, कोशिश कीजिए। लेफ्ट साइड में देखिए ना, वहाँ मोट लिखा हुआ है, उसके हाँ, ऊपर हो गया, क्लिक हो गया। कीजिए। वो हो गया, चलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा मौजू था वो था फजलत की तालीम के मुतालिक, और इसी ताल्लुक से बहुत सारी ज़िमनन बातें आ गई हैं, है ना। तो अब ये अपने इलाके से भी शुरू हो रहा है। इस ताल्लुक से आप लोग जिस तरह से भी आप अपना राय रखते हैं ज़रूर बोलें, या नहीं तो कम से कम हिम्मत अफजाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु वस्सलाम अला अलैहि व बाद।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ماشاء اللہ جو ہے مرکز الفرقان سے جو ہے فیض کی تعلیم کا جو ہے پہلے اعلان ہوا تھا، کورونا کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے جاری نہیں ہو سکا. انشاءاللہ مستقبل قریب میں جاری ہونے والا ہے. اللہ جو ہے جزا خیر دے شیخ عبدالرحیم صاحب کو. بس ماشاءاللہ باتیں تو آج بہت ہوئی ہے الحمدللہ، تقریباً ہر چہار جانب سے باتیں ہوئی ہے اور ہر نقطہ پر بات چیت ہو گئی ہے کہ جو ہے تعلیم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، عصری تعلیم سے اس کو ملانے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں تعلیم ہو رہی ہے اس کو جو ہے پریکٹیکل ہو. جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں ایک جو ہے کورس ہے، میں تو وہاں پڑھا نہیں ہوں، البتہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. وہاں ہمارے ساتھی لوگ ہیں کہ جو اجنبی لوگ ادھر سے جاتے ہیں ان کے لیے 2 سال 3 سال کا کورس ہے. اگر کوئی اسکول کا بھی جو بچہ گیا تو 2 سے 3 سال کی تعلیم ہے. اس سے پہلے ایک ڈاکٹر ریشم سے مطلب ان کا میں ایک محاضرہ سن رہا تھا، تو ایک عام آدمی جو ہے 2-3 سال کے اندر عربی میں اپنا ایک جو ہے درخواست لکھنا پڑھنا جان لیتا ہے. مطلب وہاں کا کیا سسٹم بنا ہوا ہے. شیخ عبدالرحیم صاحب جو وہاں کا نصاب لائے ہیں اس پر غور خوض کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر اس کو جو ہے لائے عمل نافذ کر دیا جائے تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں نیپال میں 8 سال تک مدارس کے بچے عربی پڑھتے ہیں. نیپالی کو فی الحال چھوڑ دیجیے، اور اردو میں بھی کچھ لوگ جو ایک مضمون نہیں لکھ پاتے ہیں، اور عربی تو دور کی بات ہے. تو یہ اصل میں ہمارے یہاں پریکٹس کی کمی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے آدمی لکھے، اس کو جو ہے تمرین ہو، مشق ہو، مضمون لکھایا جائے، خطوط لکھایا جائے اور اس پر جو ہے عمل کرایا جائے. انشاءاللہ جو ہے مستقبل قریب میں جو ہے بچے جو ہے نکھریں گے انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر شیخ عبدالرحیم صاحب کو انشاءاللہ اس پر عمل کرے. یہ انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، قوم کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. السلام علیکم. اگر ہمارے بچے عربی ٹرانسلیٹر بھی اچھی طرح سے کرنے لگے ٹرانسلیشن تو بھی بہت اچھی بات ہے. جی جی بالکل بالکل، سب کی انشاءاللہ ضرورت ایسا ہے. ہوگا، انشاءاللہ سب ہوگا. اس لیے میں نے کہا ہے کہ زبان کو بڑھا سکے انشاءاللہ. ہاں ہاں، جب عربی ٹو عربی پڑھائیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا، ورنہ عربی میں پڑھاتے ہیں اور ترجمہ اردو میں کرتے رہتے ہیں تو لوگ اردو پہ دھیان رکھتے ہیں اور کہا کہ یہ جبر زیر اور یہ سب اسی چکر میں الجھ جاتے ہیں. سب پریکٹیکل طریقے سے عربی ٹو عربی پڑھائے گا، انگلش ٹو انگلش پڑھائے گا، نیپالی ٹو نیپالی پڑھائے گا. نیپالی ہے تو میں نیپالی ہی میں پڑھاؤ، وہاں پہ ہندی اردو میں اصلی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی، زیادہ مشق ہو، مشق زیادہ سے زیادہ مشق کی ضرورت ہے. کی زیادہ ضرورت. اور بچے کی ہفتے میں جو تقریر ہوتی ہے، ہمارے انجمن جو ہوتا ہے اس کے اندر بچوں کو ہر ہفتے مہینے کے اندر 4 ہفتہ آتا ہے تو 4 ہفتے میں 4 زبان کے اوپر اس کو تقریر کرنے کا، زیادہ نہیں، کم سے کم 10 لائن 5 لائن نہیں کر سکتا یاد، وہ مکمل یاد کرے. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا یاد کرے اور اٹک پٹک یاد کرے. میرا ایک کوشچن ہے، ابھی جو ہمارا مدرسہ کا جو سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم، یہ کمپلیٹ پڑھنے کے بعد جب ایک طالب علم کمپلیٹ کر لے تو کیا وہ عربک میں کنورسیشن کر سکتے ہیں؟ اس کنڈیشن میں کیا ہوتے ہیں؟ نہیں کر سکتا. اتنا لمبا ٹائم دینے کے بعد اگر ایک لینگویج نہیں سکھا سکتے ہیں تو پھر ہمیں وہی بات ہو رہی ہے نا، اسی پر بات ہو رہی ہے کہ مشق تمرین نہیں ہو پاتا، اسی پر بات ہو رہی ہے. جی جی، ہمیں بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے اس پہ، اور یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے عبدالرحیم صاحب انشاءاللہ اس پر غور کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ترتیب دے رہے ہیں. انشاءاللہ اگر وہ عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہوگا، کام ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے اس کے لیے جو ہے نا مدرسہ والے ذمہ دار ہیں ہی، اور گارجین بھی ذمہ دار ہیں. اور خاص کر کے مدرسہ جیسے ہم نیپال میں رہتے ہیں، ہماری نیپالی زبان میں ہم ایک لفظ نہیں بول سکتے ہیں. کیوں؟ نصاب میں تو ہے لیکن اس کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا جتنا کہ ہم لوگ عربی پڑھ لیتے ہیں. عربی 8 سال پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک عربی لفظ نہیں بول سکتے ہیں، سمجھے نا. اس وجہ سے ہم کو یہی کہہ کہ اتنا شارٹ کیجئے کہ ہر زبان میں، انگلش ہے، نیپالی ہے، اور اس کے اندر جو ہے لڑکا اتنا یہ کیا کہتے ہیں ماہر ہو جائے، کہیں پر اس کو پریشانی نہیں ہو. اور اس کے لیے جیسے شیخ رحیم صاحب بولے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں گاؤں میں دھیان دیا جائے. تو جیسے آپ اپنے مدرسہ کو الحاق جو ہے نا گاؤں والا سے کریں، آپ اپنا نصاب دیکھیں، یہ چیز آپ کو پڑھانی ہے، یہ چیز پڑھانی ہے آپ کو، سمجھے نا. اور وہاں پر جو ہے صرف تمرین دینے سے نہیں ہوگا، تو پریکٹیکل یہ لانا پڑے گا. آپ اپنی زبان کو جیسے آپ یہ عربی پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، آپ ہم اپنے بچے کو عربی سے تو یہ نیپالی میں کیوں نہیں سکھا سکتے ہیں؟ جاپان ہے، اتنا یہ ایٹم بم گرایا گیا، سب لنگڑا لولا کانا ہو گیا، لیکن وہاں کی زبان انہوں نے قومیت کو ثابت کیا، اپنی زبان کو رکھا. پوری دنیا میں اپنی زبان ہی بولتا ہے وہ. اگر امریکہ میں بھی جائے تو نیپالی کیا کہتے ہیں وہ جاپانی زبان میں بولتا ہے، وہ انگلش میں نہیں بولتا. زبان، ہاں زبان کے بارے میں تو میں کہوں گا، اگر سپوز کرے کہ آپ اگر ترائی ایریا میں ہے
تو آپ میتھلی بولیے یا پھر اردو بولیے، جو ہندی بولیے، وہ اپنا لینگویج ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نیپالی میں ہی کریں گے. لیکن اگر آپ ایسا سکھائے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے، انگلش سکھائیے، عربک سکھائیے، بچہ ہمیشہ کامیاب رہے گا. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اپنے نیپالی زبان کو، اس کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم کیا کہتے ہیں، ہم اپنے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے نیپال میں رہ کر کے ہم اپنی کسی بھی ادارہ کے لیے ایک درخواست نہیں لکھ سکتے ہیں، ایک اپلیکیشن نہیں بھر سکتے نیپالی زبان میں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ نصاب میں تو رکھے ہوئے ہیں لیکن پریکٹیکل طور پر اس کو صحیح سے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے وہ کمپلسری ہونا چاہیے مدرسہ میں کہ نیپالی زبان. ہم لوگ نیپال میں رہ کر کے پہلے ہندی پڑھتے تھے، ابھی نیپالی ہونا ضروری ہے. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر باتیں ہوں گی مزید. ابھی ہمارے ساتھ شیخ سلیم ساجد صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کئی مرتبہ شیخ کو میں نے دعوت دی لیکن شیخ بتایا بہرحال مشغول ہیں، نہیں آ پاتے ہیں. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا استقبال ہے. اور میں چاہوں گا کہ شیخ صاحب جو ہیں یہ بھی اب آئے ہیں، تو ابھی ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہے فضیلت کی تعلیم کی بات جو چل رہی تھی فرقان سے، تو ہم لوگ اسی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں شروع سے ہی، تقریباً 2 گھنٹے سے بات اسی پر ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ آپ بھی جڑے ہیں، تو آپ بھی جو ہے اس کی تھوڑی سی فضیلت بتائیں اور اس کے تعلق سے کیا کیا چیز کی ضرورت پڑے گی. لوگ یہاں چاہتے ہیں کہ جو بھی بھاشا، خاص طور سے نیپالی ہو، عربی اور انگلش، یہ بھاشا جو ہے ہمارے بچے 20 سال گزار دیتے ہیں لیکن وہ بول نہیں پاتے ہیں، لکھ نہیں پاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو شیخ سلیم ساجد صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے میں اس زوم میٹنگ میں شرکت کرنے والے تمام بھائیوں کو سلام کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹنگ کی ابتدا سے ہی میں آپ سب کے ساتھ شریک ہوں ماشاءاللہ، اور ساری باتیں شروع سے سنتے آ رہا ہوں. اور چونکہ مرکز کی جانب سے ہمارے شیخ عبدالرحیم مدنی صاحب جواب فرما رہے تھے اور فضیلت کی تعلیم کی ضرورت اور اس کی اہمیت سے متعلق انہوں نے بہت ساری باتیں پیش کی، اور مولانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سے مشوروں سے نوازا، بہت سے سوالات بھی کیے، ان کے جوابات بھی دیے گئے. اور مولانا شریف تیمی صاحب نے بہت ہی بہترین اقتراحات اور ان کی نظروں میں کھٹکتی ہوئی جو خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو رکھا، اور بہت حد تک ہمارے شیخ عبدالرحیم صاحب نے جواب دیا ہے اور نشاندہی فرمائی ہے. اس کے بعد بہت سے اخوان نے بہت ساری باتیں رکھی ہیں. ایک بات یہ آئی کہ نیپالی زبان میں مہارت، تو جیسا کہ شیخ عبدالرحیم صاحب نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ خاص طور سے مرکز الفرقان کے اندر نیپالی، انگریزی، سائنس اور میتھ، یہ 4 سبجیکٹ ہم نے بورڈنگ اسکول سے منتخب کیے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ گورنمنٹ سے یہ سب ہم طے شدہ اور مقرر شدہ اور اس کو منظور شدہ کریں. جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے، جیسا کہ ایک بھائی نور عین اکرم صاحب نے مشورہ دیا کہ ہم اسٹوڈنٹ کو اسکولوں کے ساتھ اوپننگ تعلیم سے جوڑیں. ایک چیز یہ بہت بہترین چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سرپرست لوگوں کو بھی بچوں کی تعلیم اور تعلیمی معیار پہ ابھارنا ہوگا. میں بتلا رہا ہوں، ہمارے مرکز میں شیخ نجم الدین سلفی جو ہرلاکھی بہار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے 3 بچے پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے یہاں گورنمنٹ اسکول میں اپنے بچوں کا نام لکھوا رکھا ہے پہلے سے. وہ معقول فیس بھرتے ہیں اور بچوں کی ٹریننگ دلاتے ہیں، ٹیوشن کے طور پہ ٹیچر کو بلا کر ٹیوشن دلاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں جو امتحانات ہوتے ہیں
उसके अंदर उनके बच्चे शिरकत कर रहे हैं। उनका कोई लड़का 8 क्लास का एग्जाम दे चुका है, कोई 9 में है, और अभी उनके 2 बच्चे 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों न हम भी अपने यहाँ जो बच्चे हैं, जब तक हम मदारिस के मुकम्मल निसाब को गवर्नमेंट से मुल्हक कराने की कोशिश भी करते रहें, और अपने बच्चों को जनकपुर के किसी स्कूल से जोड़कर हम अपने बच्चों को वहाँ पर इम्तिहान दिलाएं, और हमारे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम के अंदर भी आगे बढ़ते रहें। नेपाली ज़बान में महारत के लिए, जैसा कि शेख कासिम साहब आपने फरमाया था कि असातिज़ा के ऊपर जोर दिया जाए कि वो जिस ज़बान की जो घंटी हो, जो क्लास हो, उसके अंदर वो वही ज़बान इस्तेमाल करें। और इसके ऊपर मैंने 12 मीटिंग के अंदर असातिज़ा को बैठा करके नसीहत करने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है, हमारे एक साहब ने ये कहा कि जिस तरह मदीना के अंदर अजनबी तलबा के लिए अरबी की ट्रेनिंग होती है, 1-2 साल का कोर्स होता है, और बच्चों को अरबी अदब की महारत हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी गुज़श्ता साल एक सऊदी आलिम दीन है यहाँ रियाद के अंदर, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ये जज्बा है कि अरबी ज़बान को पूरी दुनिया में राइज किया जाए, और कुछ तलबा हर मदरसे में ऐसे हों जो सऊदी न भी आ सकें तो महारत के साथ अरबी ज़बान में बात कर सकते हों। उनके साथ 1-2 हमारी मीटिंग हुई, और शेख अब्दुल रहीम मदनी साहब भी मीटिंग के अंदर शरीक रहे, और हमने इसके ऊपर पूरी तैयारी कर ली है, और इसका खुत्ता भी सऊदी ने खुद बनाकर पेश किया, हमने भी उसके अंदर कुछ तादील की, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मरकज़ुल फुरकान के अंदर एक तखस्सुस कोर्स होगा, 1 साल या 2 साल, जिनके अंदर बच्चों को अरबी ज़बान की मुकम्मल महारत के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और उस शेख ने कहा है कि हम और हमारे दोस्त अहबाब हम बारी बारी 1 माह, 2 माह, 3 माह के लिए नेपाल जाएंगे, मरकज़ में क़याम करेंगे, और हम खुद रहकर तुम्हारे बच्चों को वहाँ अरबी की ट्रेनिंग देंगे और हम माहिर बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी है, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें हौसला दे। और बस क्योंकि बहुत से इख्वान इंतज़ार में हैं, तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब ने जो ये वक्त दिया है इसको कबूल फरमाएं, और हम सब के नेक अमाल के अंदर इसको लिखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई कि कम से कम शेख आप आए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम चाहते हैं कि आप सब जो है कम से कम ज़्यादा वक्त न दें, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप टाइम दे सकें खिताब करके अगर आप लोग आते हैं तो थोड़ा हम लोगों की एक माहौल बन जाता है, और उस हम लोग किसी न किसी मौजू के ऊपर फिर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हम लोग बराबर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। ये मीटिंग हमेशा रहेगा, चूँकि ये हमारा एक आपसी मेल मिलाप है, एक भाईचारा है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है, जहाँ पे हम लोग आपस दिल की बातें, कौम की बातें, मिल्लत की बातें, समाज की बातें हम लोग आपस में कर लेते हैं, और उसको उठाने की, उभारने की हम लोग जो है इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये बड़ी इंशाल्लाह ये जूम मीटिंग हम लोग चलाते ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो खास वक्त हम लोग दे रहे हैं वो सब कुछ टाइम निकाल करके ही देना पड़ता है, आप लोग भी जो निकाल के ही आते हैं, तो माशाल्लाह हम सब मिल करके ही करेंगे। अगर इसमें से कोई और भाई जो बचे हुए हैं और जो कुछ कहना चाहें तो 1 मिनट करके आप ले सकते हैं, वरना मैं शेख अब्दुल रहीम साहब से कहता हूँ, नहीं तो आज हमारे शेख सलीम साहब आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आखिर में अपनी दुआया कलिमात के साथ जो है इस मजलिस का इख्तिताम करें। अगर कोई भाई साहब हैं तो आप अपना वीडियो ऑडियो खोल लें, और अगर शरीफ तैयबी साहब कुछ कहना चाहते हैं शायद। मेरी जानिब से भी शेख सलीम साजिद मदनी साहब शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। अल्लाह उन्हें सेहत और आफियत से रखे, लंबी उम्र अता करे। आमीन। आज मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी बातों को सुन करके। जी 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 जमाना हो गया, क्या कहते हैं,
उनसे मुलाकात किए हुए उनकी बातों को सुनने। बहरकैफ शेख से गुजारिश है कि क्या कहते हैं, नई नस्ल से जुड़े रहें, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। तन्हाई की जिंदगी बहरहाल क्या कहते हैं अजाब से कम नहीं है। एक दूसरे से इंशाल्लाह मसरूफियत बहुत रहती है शेख। अभी फिर 4 बजे से ऑफिस में फिर ड्यूटी है और फिर कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना वो सब लगा ही रहता है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फीकुम। आप के गिरा कदर मशवरों से मैं भी मुस्तफीद होता रहता हूँ, फेसबुक वगैरह पे देखता रहता हूँ। अब वो सामने कुछ नहीं लिखता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि जो हमारे नौजवान हैं, शबाब हैं, इख्वान दुआत, ये सब जो कुछ लिखते हैं कम से कम एक नज़र उसको पढूं, ये मेरी कोशिश होती है और मैं कुछ न कुछ वक्त निकालता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह। चले से वक्त ज्यादा हो गया है, तो शेख सलीम शाहिद साहब आप दुआए कलिमात के साथ इस मजलिस का इख्तिताम कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर लना उमूरना लिखिदमतिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, जिस मकसद के लिए हमारे अहबाब ने इस ज़ूम मीटिंग को नाफिज किया है, ऐ अल्लाह हमें इस मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपने दीन की सरबलंदी और अपने दीन की खिदमत की हम सब को तौफीक बख्श। ऐ अल्लाह, हम तुम्हारे बंदे हैं और हमारे कंधों के ऊपर तुम्हारे दीन की एक बड़ी अमानत है। ऐ अल्लाह ताला, इस अमानत को नाफिज करने और अदा करने की तू हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे दिलों को जोड़ दे और हम सब को मिलजुल कर अपने दीन की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे वसाइल महदूद हैं, हमारी वसाइल की फराहमी अता फरमा। हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था, अल्लाह ताला उस ख्वाब की ताबीर का हमें मौका अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलिए माशाअल्लाह, इसके साथ ही हम इस मजलिस का इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।